Today we're going to discuss Pakistan's favorite subject, taxes. We're going to try and tax the nation to death as we have for the last 70 years. Donors like us to tax and we like to be taxed. So let's proceed with discussing tax reform. But today the webinar is in conjunction with Prime. Prime has launched a book on tax reform with the authors, the authors are Ikramul Haq and Huzaima Bukhari. And we have also launched a book by PID on tax reform by the same two authors. So we thought we'd do a joint book launching of the two books. So before I go further, let me ask Ali Salman of Prime to introduce his book. Ali Saab, go ahead. Ji, Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Nadeem, and great to be part of this joint launching with PIDE. The book, which is authored by Huzaima Bukhari and Dr. Ikramul Haq. I think I will leave the discussion on the contents to the authors, but as the publisher of this important book, which is about the proposal of flat taxation in Pakistan, on behalf of Prime, I think I would like to say that we have seen, as Dr. Nadeem rightly pointed out, extensive debate on tax reforms, and it seems that a lot of efforts have gone into by various economists over the last 20, 30 years in advising the government how to collect more taxes. Our approach is different, and we believe that tax is essentially a function of growth, economic growth, but also tax is essentially a relationship between the citizen and the state. And therefore, the system needs to be trustworthy, simple, and transparent for both state and the citizen, who are the taxpayers. We also challenge this notion that we have been told by and again by government, by international donors, that Pakistanis do not pay enough taxes. As both respected authors talk in the book and also in their columns, that we pay a lot of that. We pay a lot of taxes, but it is not counted properly. And so I think we have evolved a proposal, and we believe that it is workable, it is doable, and but it needs certainly more discussion, more debate within the academic community, with the policymakers. We are doing our part as a think tank. We are talking to the businesses, to chambers, business associations, to the government, and now together with PIDE, we are contributing in that debate. So I'm looking forward to a very engaging discussion today with the authors and with the panelists. I'm grateful to both Dr. Iqbal and Dr. Mahmood for joining us, and of course, as well as Huzaima and Ikram for continuing this debate. Grateful to Dr. Nadeem for creating this opportunity of joint work. Thank you very much, Ali Saab. So ji, let's जरा सुने हम टैक्स की बात. दो बड़े अच्छे रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है, दो किताबें. तो to introduce the two books, Huzaima Bukhari, why don't you start? Assalamu alaikum everyone. Acha ji, ab we'll have a mixed kind of a language, Urdu or English. But I would like to start off by saying that there is a system of evolution towards improvement in the working of countries. But in our case, we are constantly going back to square one, from
progress to deterioration. At least that's what we have been seeing in the last 7 decades. Till today, we are enmeshed in a series of reforms that never seem to deliver in the true sense of the term. And our economic foundation is still fragile despite non-stop attempts on the part of the revenue authorities to milk taxes from dry cows and spread the net of withholding taxes in all directions, catching small fry, but allowing the big fish to escape. So this is, in a nutshell, is the theme of our research on reforms. Actually, I'm a teacher of tax, and I realized that we have very little literature on Pakistan tax systems and everything. So I think we decided to introduce this kind of a topic and go back in history and check out what kind of reforms were made and what are the general issues involved in reforms and why we have failed on all fronts. So I would like to share the screen with a little very brief kind of a presentation of the main issues in the book. So I'm trying to share now. Okay. Well, I hope apparently it's not working. It was working a few minutes back. I think the host will have to allow the share. Tax reforms in Pakistan, it's a historical and critical view of the whole situation. We have dedicated this book to millions of Pakistanis who do pay income tax at source and may or may not be liable to tax under the law, yet are dubbed as tax cheats by the state, authorities, leaders, donors, and the media, of course. There are in all 4 parts to this book. Part 1 discusses issues, and the issues mainly relate to earlier failed tax reforms, distribution of taxes between federal and provincial governments, then failure of the revenue authorities in collecting sufficient revenue, bridging tax gap, and realizing real tax potential. I mean, these are the issues that we have discussed in this part. And failure in tapping underground economy and plugging tax evasion, figure fudging to portray a false picture before international donors, and no efforts in moving towards self-reliance and fiscal decentralization. Then, of course, the irrational tax laws and complicated procedures. So these are the things that we have essentially discussed in the first part. And by the way, taxes are byproducts of economic growth, but the past decades have seen a complete reversal of this concept, resulting in tax base erosion and acute distortions in the economy. Well, these are okay. So here in this slide, I've tried to give a gist of the matter in the lines of the OECD tax policy. So you can just go through that. Okay. Now, we feel that confiscatory taxation is our, in the next part, it's the confiscatory taxation, which is growing demand for taxation, but no quid pro. Now, that is a very serious matter because if the public does not get anything in return, the desire to pay taxes also ebbs. So the best thing is that, there should be a quid pro quo. Under the Constitution, there's a contract between the public and the government, and we should be able to see the actual benefits of taxes coming right down to the last person in the public in order to incite people and, motivate them to pay taxes. So our taxation has essentially been confiscatory nature. There is of course, continuous rise in external debts in getting to become which is also getting to become a security threat to the country. And then non-existence of a social contract, like I just mentioned, between the government and the people. Then another very serious thing which we have noticed in our country is the outlandish lifestyle of the elite compared to low living standard of majority. Now, if you have noticed that recently Germany said goodbye to Merkel, and
of a ultra rich kind of a living, which is definitely not conducive to our kind of environment, but that's the way things are. Then exploitative and manipulative taxation system, of course, where we continuously want to, like I said earlier, milk dry cows. Then three main sources of revenue upon which government treasuries depend is income, capital, and consumption. Now, too heavy a tax burden on any one of these will cause it to become unreliable as a source of revenue. All right. Then our main challenges, and of course our past legacy is before us, is that we need to have, now the challenge is that we need to have a paradigm shift in tax policies. How to do it, how to go about it, we've tried to discuss in this book. And I'm not going to teach people, because the best thing is that they should read themselves and find out what are the main proposals, and we keep data mining and moving towards optimum tax without hampering business growth. That's very important. Now, all our policies have been aimed at reducing economic growth and business growth and discouraging SMEs, which is not on. We need to really, give them more room for performing better, because the better they perform, naturally taxes will come all by themselves. Then retention of taxpayers' refunds and taking advances from them without giving them any compensation is also another challenge that needs to be addressed by legislators. And in the end, we have tried to give some solutions in our third part. Fourth comprises annexure of various data that we have collected, which includes collection of taxes right from 1947 to date. जो latest है उस वहाँ तक है. So that is something which was very difficult to get hold of, but Ikram Saab, is really, he gets into things and found out all these different statistics. Okay, so in the solutions, we have discussed introduction of taxpayers' Bill of Rights. With every obligation, there are rights. So if a taxpayer is obliged to pay taxes, he also has some certain rights which needs to be properly legislated so that there is some form of security for the taxpayer. Then we definitely need a new tax law which is simpler and easily digestible by everybody. Then we also need to have harmonized tax system, merging collection of taxes by federal and provincial governments under one authority, so that people do not have to go to many different doors, and there should be a kind of a one window operation where one authority manages all collection and distribution of taxes. And of course, last but not the least, we have discussed the introduction of a national tax tribunal, a specialized forum for the redressal of grievances of taxpayers and the department, of course. And Uzama, you are fading out. Sir, madam is disconnected, sir. चले जी फिर इकराम साहब, why don't you take over? इकराम साहब भी डिस्कनेक्ट हो गए. सर वो अनम्यूट हो गया. Hello, sir. Go ahead. Assalamu alaikum to everybody, and I'm grateful to Pride and Prime that they have published our books. In fact, Prime published it 2016. It was first study that came in the shape of some debatable document. So that was a paper, and we waited for about
many years to see how people perceive that, how people read that, what is the feedback. So in 2020, in December, we decided to update it with an enlarged version of it. So basically, these books are not something like that you are just asking others to follow you, but it's kind of a material that gives you some hints that how we should get rid of the prescriptions given to us in 6 years, which was a disaster that under tax reforms administration program by World Bank. And at the end of the program, their own assessment was of complete failure. So that $100 million, and now we have again taken 400 million from them, as well as Punjab this time, following the footsteps of federal government, has taken a loan of 300 million. And I sometimes wonder that if you want like 600 million for social security, you want this much amount to reform yourself. So are we so barren a land that people don't read, write, or they can go for reforms? Are we are so dependent on them? That is the main issue that actually we raised. The rest is just a kind of sketch that is debatable, because I think that how people should be taxed, what should be the tax rates, how these should be collected, it's primarily political issues. And our political parties, as we know, they don't have any kind of research cells, they don't issue their own policy papers, they have no culture of going to the roots of the problems they face. And the vacuum we always see is either filled by uh, senior officers, they call themselves secretaries, sitting, not knowing much what they are doing of accounting, finance, economics, and taxation. So, of course, Dr. Iqbal is here. He has a long, long association with Federal Board of Revenue in the headquarters, knowing the institutional memory, and we work together. So, not uh, in a very close terms, but obviously under one organization. And we all know what the problems are. But there was no room to discuss, because every time somebody is coming and imposing on us that this is the best agenda for you, go and implement that. And this addiction to loans, this addiction to aid money, this addiction to taking their policies, this irritates me personally. I don't know about others, but it irritates me personally that I have no capacity to reform myself if I have to have in the issue of honesty and whatever their vision is, which FBR on their website is available. What kind of money you need for to be efficient, or what kind of uh, 400 million we need to, we want to buy some uh, computers, or we want to buy some software. I don't know, because there is no transparency in it. Just as a paper that this is a program, 1.2 billion and 400 million will come from us. So the rest will by the counterpart. So a country heavily indebted, perhaps they say that beggars are not choosers. So that is one reason or not has to be discussed. Obviously, long-term project loans were utilized by China, India, but they never allowed IMF and World Bank to come to their policies, why they should and why we should not. That is my first concern in the book. Second concern is that we say our tax to GDP ratio is very low. And if a 20% is contribution of agriculture, and they are contributing 0.02% or maybe less than that, then how you can say, first of all, then we should take away that 20% from that GDP, and then we should calculate. Secondly,
the kind of tax expenditure we are incurring, that all kinds of waivers, concessions, and this new law when it was imposed on us by IMF in 2001, made effective from tax year 2003. Before its implementation, as Nadeem Saab has written aptly in his foreword to our book, that the Supreme Court in the very first case explicitly said that it is promulgated in post haste, and before its implementation 3,000 amendments are made. Can we think that this should be a case anywhere? You could have repealed it, and you could have inserted new changes and made it an act of parliament, but nobody's bothered. 79 was by a martial administrator. Then in 2001, again, there was a military rule. So many years our legislators, if we take all the early years not into account, but just take, for example, from 2008 to now to 2020, this first decade of democracy they call, and then 2 years and 2.5 years above that. So have we ever heard any parliamentarian, anybody to talk about that we need tax codes to be simplified, to be made understandable by the people? What is the meaning of voluntarily compliance for us? Why we always keep on asking for more taxes, imposing more taxes? Why don't we talk about growth? Why don't we not talk about garrisons, and we talk about golf courses, and we talk about GORs, and we talk about the money we spent on that, the VIP culture, the kind of perks, perquisites they enjoy, and the kinds of lifestyle they on the taxpayers' money. So why don't we not talk about that? And why in any IMF or World Bank report, there is not a single mention that how oppressive this tax system is, that 100 million mobile users, unique mobile users go, the total number is now at, I have taken the latest figure from PTA, is something like 176 million subscribers, but since some have 2 or 3, and 100 are unique mobile users. So they are paying 12.5%. How many of these have taxable income? How many are filing returns? How they should file return? How should they get their money back? Nobody is concerned about that. But we keep on saying that we are a nation of tax cheat, and there were even on media continuous campaign and funding by, I don't know, DFID or whatever that was, but the Pakistani name was Raftar, and all kind of nonsensical things were told that he's not paying his taxes. If you are keep on giving amnesties to the rich, and this has become a kind of permanent feature in Pakistan, and after 12 and 14 amnesties, you are still saying that developers and builders who have just to pay capacity tax per square feet, not to tell what profit they earn. Land is a very precious asset in this country, and they will have no taxation. Even their resources will not be probed into. So this is the culture over the period of time lender and donors have actually imposed on us, or we have been taking advantage of this money and then our leads for doing whatever they feel like. So these fundamental questions have been taken into account in these two books. But unfortunately, most of the time when I interact with the Federal Board of Revenue or chambers and others, they all say that, sir, you are talking about flat rate of tax, this will be not progressive. So I ask, what kind of progressive tax you are collecting? If 6 million is the last slab for non-salaried person, and only 4,000 people are paying tax more than six, crossing that limit. So where is your capacity to have this progressive taxation system to collect
And then they will say, oh, sorry, the enforcement capabilities are weak. There's a weak enforcement. So what money then you are taking from lenders? What for? If you haven't able to develop capacity and capability, or on the other hand, as I have told, that withholding taxes after 5 or 6 now deleted are 6 is still 60, and they are so cumbersome. And you have taken all the withholding agents as your slaves, because if I go to constitution, there is one article which says that forced labor is prohibited. So I don't want to collect tax on your behalf, even if you give me money, but they have specifically provided in the law that for collecting this money, you will not ask for any compensation. So what can be the worst example? That I am performing your duties. As a bank, I have to collect millions on your behalf, and you are telling me that you should do this work. My fundamental right is that I can refuse. It's a forced labor. I don't want to do it even for money's sake. But you are saying you will not even get compensation. So this is very strange. And those who are always saying that tax rates should be progressive, rich people don't pay tax. So what you will do with that taxes, even if you get that taxes, you will waste them in two items alone. Now your debt serving is now over 2,500 billion, and you have to spend necessarily say 1 trillion on your defense and then pensions and whatnot, and then you have to give 57% to provinces. But provinces are where provinces are. They are not in policy making. They are not in enforcement. You have excluded them, and other issues are very important. That why income tax is fragmented into agriculture income tax and non-agriculture income tax. It should be at one place. Then you have sale tax, but sale tax is again fragmented. Sale tax with services is with the provinces, and the sale tax on goods is with the uh, center. So you can make the things easier for the people. So I have to file like to 5 jurisdictions every month, about 5 if sale tax I take, and my client is doing like in all business in all provinces. So he has to give one return to FBR, 4 returns to provinces in all 60, then 12 times advance income tax, then 52 times he has to deposit money, because every week he has to collect and deposit in your treasury. So this whole system is revolving around 22,000 or 25,000, whatever the strength of FBR is, I'm not concerned. But most of the time, they are asking citizens and institutions to collect tax. And at the end of the year, when I see their yearbook, their own effort is 4%. And what makes the things worst is that at import stage, they collect all taxes in advance. Why? I have yet not started my business. I have just imported machinery. You are saying me, please pay me sale tax, please pay me income tax. I haven't used that machinery yet. I have imported finished goods. You are saying, okay, this is custom, this is additional custom, this is regulatory duty, this is income tax, this is sale tax, and what will I will do then? How business will flourish? Is this tax system is killing growth? I think so every transaction you are uh, with the passage of time, I have seen that, and I will share figures as well. But my fundamental question to all present today is that we should debate it with open heart and see that what is the expenditure side. That expenditure side is so heavy. When I say tax expenditure, that is almost 30% of tax collection. So you have a full second schedule full of exemptions. Same is the position in sale tax. So on the one hand, there is the chargeability, then there are waivers and exemptions. So what kind of tax codes we should have? These kinds of long list of exemptions, waivers, concessions,
And on the other hand, you are not even sparing the poorest of the poor, asking him to pay 12.5% advance adjustable income tax. And on the other hand, Dr. Sania Nishtar will give them some money, which is like 2,000 rupees a month. And at the same time, you are taxing that person. So these are my fundamental objections and my overall thinking, which has translated into book. As we will go into and interact with Dr. Iqbal, I'm thankful to him that he has come. Dr. Mahmood is here and all the participants. So our books are there. You can criticize them. You can build on them. But we have expressed whatever we wanted. Thank you very much for. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you very much. So we've got a fragmented tax system. We've got a confusion between direct and indirect taxes. We've got a withholding regime that kind of takes people's taxes in advance and never returns it. And we've got a withholding regime where FPR is not the collection agency, but many businesses, many people are collection agencies. Policy is very slow to develop and under research, and the collection system is broken. So there are a large number of problems. Iqbal Saab, Dr. Iqbal has been with FPR for a long time, senior advisor, FPR, senior FPR member. Iqbal Saab, I'd like your comments and thoughts on the books. Dr. Nadeem, sorry for interruption. I'll just take 1 minute to summarize some numbers before Dr. Iqbal speaks. Apologies for the interruption. Based on the book which Dr. Ikram and Huzaima have written, essentially the proposal of flat taxation has 4 pillars. We are talking about a transformation from a high rate to low rate, from different fragmented taxation to single flat taxation, and then from exemptions to broad-based, and from discretionary policies, which is based on SROs. We have seen 300 SROs in last 2 years to a predictable policy. And on base of that, the proposal talks about the new tax code. The new tax code is essentially 4 numbers. So we are proposing that income tax on salaries and non-salaries and partnerships to be brought at a single 10% across board, no exemptions, but certain thresholds can be exempted, no exemption in terms of the nature of income. Secondly, income tax for the corporate, which is 29% to 39%. We are proposing 20% across board. Thirdly, sales tax. We have different slabs and different rates. We are proposing across board 5% single stage taxation, which is to be imposed at the last stage of consumer and deposited back to the government. And lastly, the 4th pillar is customs duty, which we are again proposing at 5% across board, after doing analysis that ultimately, in the collection we receive after accounting for different rates is not significantly different. And as a result, we project that 2 things are likely to happen. Our tax structure can become from regressive, which is mostly indirect taxation at the moment, to progressive. Reliance on import taxation will be significantly reduced. Currently, we rely on about 35 to 40% on import taxation, one of the highest in the world. And our tax structure will become progressive in terms of greater reliance on the income tax, by bringing about 2.5 million new potential taxpayers in the net. Thank you. Great. Thank you. Iqbal Saab, bataiye. बहुत शुक्रिया. I think I'm unmuted. जी, you are. बिल्कुल बोलिए. जी, first of all, I would like to thank Tide and Prime for initiating this debate regarding taxation. As already pointed out, the citizens have a stake in the taxation system. And since they are the ultimate sufferers of the policy of the government regarding taxation, so they must have a say in the system that is followed. I would also like to
congratulate Dr. Ikram and Madam Huzaima के जैसे पहले पॉइंट आउट हुआ था कि पाकिस्तान में टैक्सेशन पे कोई काम नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइबली नहीं हुआ। एकेडमिया टैक्सेशन पे काम तब कर सकती है, इकोनॉमिस्ट तब इस पे कोई स्टडी कर सकते हैं अगर डेटा अवेलेबल हो। हमने कानून ऐसे बनाए हुए हैं कि जी डेटा हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ऑस्टेंसिबली टू प्रोटेक्ट दी सिटीजन जिसका टैक्स का डेटा है, लेकिन बहरहाल उसका वी कैन गो अराउंड दैट, एनोनिमाइज्ड डेटा मिल सकता है। इकोनॉमिस्ट या कोई भी एकेडमिशियन तभी ही टैक्सेशन सिस्टम को स्टडी कर सकता है अगर उसके पास डेटा होगा। तो डेटा क्योंकि अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जस्टिफाइबली टैक्सेशन पे इतना काम नहीं हुआ। इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद डॉक्टर इकराम ने और मैडम हुजैमा ने इस पे काम किया है, और ये एक हरक्यूलियन टास्क है, और इसके लिए इनको जितनी भी इनकी तारीफ की जाए और इसे एक्नॉलेज किया जाए कम है। Having said that, अब हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे। इंसिडेंटली जो मुझे जब इसकी इनविटेशन दी गई तो मुझे एक किताब को रेफर किया गया था, और अनफॉर्चुनेटली वो वाली किताब है जिसपे मैडम हुजैमा ने प्रेजेंटेशन नहीं की। उनकी प्रेजेंटेशन दूसरी बुक पे थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने और सलमान साहब ने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो मेरी गुफ्तगू का प्राइमरीली जो है फोकस वो इस वाली किताब पे होगा, विच इज टुवर्ड्स फ्लैट लो रेट ब्रॉड एंड प्रेडिक्टेबल टैक्स। तो लेकिन बहरहाल बहुत सारी कॉमन थीम्स हैं दोनों किताबों में। जैसे मैडम ने इसको इंट्रोड्यूस किया प्रेजेंटेशन में, बहुत सारी चीजें वो हैं कि जो इस किताब में भी थी और मुझे उनको देखने का थोड़ा बहुत मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा डाइवर्ट करके एक चीज को एड्रेस करूंगा। जैसे अली सलमान साहब ने कहा ना कि वी आर ए हेविली टैक्स्ड पीपल। अब वी की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हम एक कलेक्टिव बात कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल अपनी बात नहीं कर रहा कि मेरा टैक्स बर्डन क्या है और क्या होना चाहिए था है, या किसी थर्ड पर्सन का मिस्टर ए का टैक्स बर्डन क्या है। हम एज ए कलेक्टिव एंटिटी, एज ए सोसाइटी, एज ए पॉलिटी बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम हेविली टैक्स्ड होते एज ए सोसाइटी, एज ए पॉलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को छोड़ के, तो फिर हम इस स्टेट में ना होते। हमारा टैक्स टू जीडीपी जो है वो एबिसमली लो फिगर्स पे ना होता। हम अपने सारे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपने टैक्स रेवेन्यू से फाइनेंस कर रहे होते, जो हम नहीं कर रहे। आप सिस्टम को इस तरह तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है, लेकिन आउटकम ऑफ सिस्टम जो है टैक्सेशन सिस्टम का, वो इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू इस ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करता कि वी आर ए हेविली टैक्स पॉलिटी। क्योंकि अगर ये इस तरह होता तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 40% होता, 30-35% होता, 30% होता, जो कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम 10 से भी कम है। तो इसलिए इस कंक्लूजन को हमें दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है। Having said that, हम इस चीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो फ्लैट टैक्स का प्रपोजल है उसके लिए जो किताब मैंने पढ़ी है, इसमें आर्थर लेफर को बार बार रेफर किया गया है, और शायद वाहिद जो एकेडमिक सपोर्ट है इस प्रपोजल के लिए वो लेफर ही है। अगरचे एक जगह पे डॉक्टर साहब ने एक किसी यूएस के कैंडिडेट का भी यही इसकी एक कोटेशन दी हुई है कि जो भी इसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्राइमरीली ये जो है इसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन लेफर के ही काम पे है। तो इसलिए थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा टेक्निकल लेफर के काम के बारे में। आर्थर लेफर को जो लोग टैक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, और प्राइमरीली उसके जो लेफर कर्व उन्होंने बनाया था उसके रेफरेंस से जानते हैं। बेसिक थीसिस उनका ये था कि जी एक सर्टेन पॉइंट के बाद टैक्स रेट का इंक्रीज काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। वो रेवेन्यू को बढ़ाता नहीं है बल्कि रेवेन्यू को कम कर देता है। और इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक बेल शेप कर्व की सूरत में है कि जब टैक्स का रेट 0 होगा तो रेवेन्यू भी 0 होगा, और जब 100% हो जाएगा तो तब भी टैक्स का रेवेन्यू जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि जब 100% गवर्नमेंट या स्टेट ले रही है तो किसी के पास इंसेंटिव नहीं होगा काम करने का। और उसके दरमियान में, इन दोनों एक्सट्रीम के दरमियान में किसी पॉइंट पे एक ऑप्टिमम पॉइंट आना है कि जब टैक्स रेट ऐसा होगा कि जो कि मैक्सिमाइज कर सकेगा रेवेन्यू को। अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कर्व थ्योरेटिकली, और अगर आप गौर करेंगे तो शायद ये एक ट्रूइज्म है, ये कोई ऐसी एम्पिरिकल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। ऑब्वियसली जब टैक्स का रेट 0 है तो रेवेन्यू भी 0 होगा, और जब 100 है तब भी 0 होगा।
लेकिन कोई इकोनॉमी या कोई टैक्सेशन सिस्टम उस कर्व के किस पॉइंट पे है, ये हाईली डिस्प्यूटेड बात है। एक हम क्या इस स्टेज पे हैं कि जहां टैक्स रेट बढ़ाने से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये लेफर का काम, हमें इसमें कोई असिस्टेंस नहीं करता और इसको ग्रॉसली मिसयूज भी किया गया है। मैं रेफर करूंगा, डॉक्टर साहब भी क्योंकि हमारी जनरेशन से है, डॉक्टर इकराम भी हमारी जनरेशन है, हमने रैगन के दिन देखे हुए हैं, हमने रैगनॉमिक्स को भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। रैगनॉमिक्स क्या थी? बेसिकली वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थी और उस वक्त ये प्लीड किया गया था कि जी के अगर आप टैक्स रेट्स बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे। इस पे रोनाल्ड रेगन के 1980 से 88 तक या 89 तक इस पे काम हुआ और उसके लिए भी लेफर के काम पे ही काफी हद तक रिलाय किया गया था। लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ? उसका आउटकम जो है, क्योंकि ये एक एग्जांपल है जहां हमने उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके देखा। उसका नतीजा क्या निकला कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशो था 1980 में यूएसए में, वो 89 में उससे 0.6% कम हो गया था। दूसरा नतीजा क्या निकला कि जो बजट डेफिसिट्स थे वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गया। मुझे याद है उस जमाने में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि इस वक्त यूएसए का डेफिसिट इतना है कि अगर आप $1 बिल के ऊपर एक दूसरा रखते जाएं तो वो चांद तक जाएगा और वापस आएगा। इतना ज्यादा उस रेगोनॉमिक्स की वजह से डेफिसिट यूएसए के इंक्रीज हुए थे और प्राइमरीली उन टैक्स कट्स की वजह से हुए थे जो लेफर के इन्फ्लुएंस में किए गए थे। तकरीबन जो टॉप मार्जिनल रेट था वो 71% से 30% पे वो लेके आए थे। दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हुए थे कि जो टॉप 1% था यूएस सिटीजन का, उनकी इनकम डबल हो गई थी और जो लोएस्ट क्विंटल था उनकी इनकम्स डिक्रीज हुई थी। तो बेसिकली ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिलॉसफी है। सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट के अपना व्यूज हैं, नियोकॉन के भी वही व्यू हैं जो कि यूएसए में डिबेट चलती रहती है। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि जो टॉप जो वेल्थीएस्ट लोग हैं उनके लिए टैक्स रेट्स कम करें, उसका इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। और उसके साथ ही वो ये कहते हैं कि जो सोशल बेनिफिट्स हैं जो दिए जाते हैं, चाहे वो मेडिकेयर की सूरत में हो, बाबा केयर की सूरत में हो, उनको विदड्रॉ किया जाए। ये रेगनॉमिक्स उसी जमाने में मार्गरेट थैचर भी थी इंग्लैंड में, उन्होंने भी यही पॉलिसी अप्लाई और उसके नतीजे में उन्होंने जो पब्लिक को बेनिफिट स्टेट देती थी वो भी विथड्रॉ की है। वो मेरी जनरेशन को शायद ये भी याद होगा कि कहा जाता था मार्गरेट थैचर को थैचर मिल्क स्नैचर, क्योंकि उन्होंने जब टैक्स रेवेन्यूज कम हुए उनकी पॉलिसीज के नतीजे में एफ्लुएंट क्लासेस को बेनिफिट्स दिए गए, तो कुछ बेनिफिट जो आम लोगों को मिलते थे, मसलन वहाँ के यूके स्कूलों में बच्चों को दूध दिया जाता था, दूध प्रोवाइड किया जाता था गवर्नमेंट के खराजात, तो वो फैसिलिटीज उन्होंने विथड्रॉ की। तो ये एक डिबेट बिल्कुल है, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि हमने सप्लाई साइड इकोनॉमी को इकोनॉमिक थॉट को फॉलो करना है या नहीं करना। टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, इस पे भी गुफ्तगू हो सकती है। इसके प्रो अगेंस्ट और फॉर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं कि जी टॉप जो इनकम अर्नर्स हैं इनके लिए हमें टैक्स रेट्स रिड्यूस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, साथ हमें ये जहन में जरूर रखना चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे प्रपोजल पे जाएंगे जो ड्रास्टिकली टैक्स रेट्स रिड्यूस करती है टॉप इनकम अर्नर्स के लिए, तो उसका रेवेन्यू पे नेगेटिव इम्पैक्ट लाजमन होगा। इसको हम मैं इस पे फर्दर भी आगे चल के भी डिस्कशन करूंगा जरूर, लेकिन ये चीज जहन में रखते हुए एक डिबेट के बाद अगर सोसाइटी इस नतीजे में पहुंचती है कि जी हमें टॉप इनकम टैक्स रेट्स कम करने चाहिए, तो बिल्कुल ये डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन ये इस इल्यूजन में नहीं लिया जा सकता कि इससे रेवेन्यू में कोई इंक्रीज होगा, इससे नेसेसरीली रेवेन्यू में डिक्लाइन आएगा। देखिए ना, ये भी हम जानते हैं, जब हम सिस्टम की डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चंद हजार लोग डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स रेवेन्यूज में। तो जब आप मिसाल के तौर पे 30% से या 35% से उनका 10% रेट दे देंगे, 1/3 पे ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो एक शॉर्टफॉल आएगा। और अजम्पशन हमारी ये है कि ये कॉम्पेंसेट होगा कि ज्यादा लोग सिस्टम में आ जाएंगे और वॉलंटरीली खुशी खुशी वो 10% देना
शुरू कर देंगे। मेरा ओपिनियन मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें ये एनालाइज करनी चाहिए कि हमारे पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं कितने। जैसे डॉक्टर साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया कि जी 20% आपकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर से आ रही है, लेकिन 20% शेयर अगर जीडीपी का एग्रीकल्चर से आ रहा है, लेकिन उसमें लोग एम्प्लॉयड कहीं ज्यादा है, लेट्स से 40% लोग, 40% लोग तो आपके आपके जो पोटेंशियल टैक्स पेयर की लिस्ट है उसमें से निकल गए। फिर आप देख लें कि अगर 50% हमारी खवातीन की पॉपुलेशन है, और ये हम सब जानते हैं कि उनमें से कितनी गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो काम नहीं कर रही, रूरल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसी तरह शहरों में भी काम कर रही हैं, लेकिन उनमें से कितनी वो इनकम उस थ्रेशोल्ड से ऊपर अर्न कर रही हैं कि जिस पे टैक्स दिया जा सके। तीसरा फैक्टर आप ध्यान में ये रखें कि हम बड़े फख्र से कहते हैं कि वी हैव ए यूथ वर्ल्ड। हमारी जो पॉपुलेशन है यंग लोगों की वो बहुत ज़्यादा है। 18 से 20 साल या जो भी आपका एग्ज़ैक्ट नंबर होगा, उसमें काफ़ी सारे लोग फॉल करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि उनमें से कितने लोग जो है वो गेनफुली एम्प्लॉयड होंगे? ठीक है ना जी, 20 साल का बंदा या 18 साल का लड़का या लड़की से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कोई टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए एक पोटेंशियल टैक्स पेयर्स की लिस्ट की तादाद वर्कआउट करनी चाहेंगे, तो वो शायद बहुत ज़्यादा नहीं हो। मेरा एक्सपीरियंस ये है, फिर एक एनेक्डोट आपको बताता चलता हूँ। मैंने सर्विस शुरू की थी एक ऐसे शहर से जो एक हमारा इंडस्ट्रियल बिज़नेस शहर है। वहाँ उस वक़्त ज़माने में कहा जाता था, एक ख़ास कम्युनिटी वहाँ बिज़नेस करती है, मैं वो नहीं बता सकता आपको। कहा जाता था कि उस कम्युनिटी के जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, उनके नाम पे भी वो रिटर्न दे रहे हैं। इसलिए कि वो एक इनकम को आप स्टैगर कर लेते हैं, वो इंसिडेंस नहीं आता, आप छोटी स्लैब, आप अपने एक्सपेंसेस को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जो लोग भी टैक्स जिनको देना चाहिए, वो शायद दे रहे हैं, वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो उतना टैक्स नहीं दे रहे जितना उनको देना चाहिए। मेरे ज़ाती ख़्याल के मुताबिक नॉन रिपोर्टिंग से बड़ा प्रॉब्लम हमारा अंडर रिपोर्टिंग है। तो इसलिए जो लोग दे रहे हैं हम उनका भी टैक्स कम कर लेंगे एक लो रेट फ्लैट रेट पे जाके, और जो हमारी assumption है कि इससे और बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट होके देंगे, वो भी नहीं होगा। इसकी एक वजह तो वो नंबर ऑफ पोटेंशियल टैक्स पेयर्स है जो मैंने आपसे अर्ज़ की। दूसरी वजह ये है कि लोग टैक्स दें क्यों? कि जब स्टेट उनको ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ना उनको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, ना उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो एक इंसेंटिव खुद खुशी से टैक्स देने वाला है, वो रेट डिपेंडेंट नहीं है। लेट मी से इट इन वेरी क्लियर टर्म्स कि वो रेट की वजह से नहीं है, ना वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की वजह से है। इस किताब में एक ये भी लिखा हुआ है कि जो सिंपल हो जाएगा कि आदमी को इनकम इतनी है, उसका 10% टैक्स जो है कैलकुलेट कैसे हो जाएगा। वो शायद अब इश्यू रह ही नहीं गया। अब तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रही होती है। आप इनकम डालते हैं, सिस्टम आपको टैक्स कैलकुलेट करके देता है। आपको ये नहीं करना पड़ता है कि जी पहले 2 लाख पे मेरा 5% होगा, वो इतना बन गया, अगले 5 पे 5% होगा, उस कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये है मेरी इनिशियल कुछ सबमिशंस इस फ्लैट रेट के प्रपोज़ल पे। आगे अब बात हम करते हैं इंडिविजुअल टैक्सेस की। सबसे पहले सिंपल ग्रीन में जो है टैक्स वो लेता हूँ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पे अगर आप एक फ्लैट कर दें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस काइंडली जो है मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर गौर करें। कस्टम ड्यूटी में हम एक कैस्केडिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। कैस्केडिंग प्रिंसिपल क्या है कि हमने गुड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। और हमारा सिस्टम क्या है कि रॉ मटेरियल को हम सबसे कम रेट पे टैक्स करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को दरमियाना एक रेट होता है, और फिनिश्ड गुड्स को सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट होता है। वजह क्या है? उसकी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर हम सारों को रॉ मटेरियल को भी उसी रेट पे टैक्स कर रहे हैं जिस पे फिनिश्ड गुड को टैक्स कर रहे हैं, तो क्या इंसेंटिव रह जाएगा कि आपकी इंडस्ट्री चले? क्यों ना, अगर वही कस्टम ड्यूटी का रेट देना है, तो हमारा जो भी छोटा-मोटा इंडस्ट्रियल बेस बना है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इसलिए एक्सटिंग्विश हो जाएगा कि जो हम थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन, इस पे भी एक एकेडमिक डिस्कशन हो सकती है कि इंडस्ट्री को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।
लेकिन फैक्ट ये है कि इंडस्ट्री हमारी यूज टू हो गई हुई है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। इट मे बी इनएफिशिएंट, लेकिन क्या सोसाइटी ये डिसीजन ले सकती है कि हम सारी इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दें? हम एक डंपिंग ग्राउंड बन जाए फिनिश्ड गुड्स के लिए और सिर्फ कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम सिर्फ कपास एक्सपोर्ट कर रहे हो, बांग्लादेश उसे कपड़ा बना रहा है, शर्ट बना के हमें बेच रहा है और हम बड़े खुशी खुशी, कंज्यूमर के लिए तो बड़ा अच्छा होगा। अगर हम ये रॉ मटेरियल की या स्टोर्स की या सेमी फिनिश्ड गुड्स की प्रोटेक्शन खत्म कर दें, उस पे भी वही रेट ऑफ ड्यूटी लें, तो क्या पाकिस्तान में कोई गाड़ी बन सकेगी? हम कैसे नहीं बाहर की गाड़ियां इंपोर्ट कर सकेंगे? अब एक प्योरिस्ट या आइडियलिस्ट पॉइंट। ओह, इकबाल साहब फेड कर गए मेरा ख्याल। चलें जी, इकबाल साहब, when you come back, we'll take over. Meanwhile, Mahmood Khalid साहब, आप, would you like to say something? इकबाल साहब ने बड़ी बातें की हैं, but I find somewhat थोड़ा सा contradiction है कि टैक्स पेयर्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है, पर टैक्स जीडीपी हमारा लो है। तो टैक्स जीडीपी रेशियो में बहुत बढ़ाना चाहिए, 40%। मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट हमें डिलीवर कुछ नहीं करती, फिर भी हमें टैक्स जीडीपी बढ़ाना चाहिए। तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। खैर, इकबाल साहब वापस आएंगे, उनसे बात करेंगे। महमूद खालिद साहब, बताइए आप क्या कहेंगे? Sir, thank you very much for having me here. बिल्कुल जिस तरह अभी आपने कहा कि we would like to disagree with Iqbal Sahab, but we would also like to disagree to an extent with the authors of the book. So I'll briefly go over what PIDE has been actually contributing, और फिर उसके बाद I'll discuss the book as well. हमने अभी सर एक बुक तो नहीं, एक्चुअली इसको कह सकते हैं छोटी सी रिपोर्ट लिखी on growth inclusive tax policy framework, which essentially covers all these issues, but from an empirical perspective. और उसमें the low-hanging fruit principle is that before we move on to very bigger kind of proposals related to the structural and other reforms, there could be simpler things which can be done, and that can actually yield more benefit. जैसे मिसाल के तौर पर हमने उसमें देखा कि जो हमारे withholding taxes हैं, अगर उसमें से हम जो revenue non-spinners हैं, यानी कि जो less than 1% contribute करते हैं, अगर उनको eliminate कर दें system से, तो the cost to FBR would not be much. लेकिन on the other side, the businesses would benefit a lot, क्योंकि उसमें जो एक hidden cost है, which is the compliance cost, normally वो नहीं consider की जाती। और ये चीजें जब हम FBR के official से जाकर discuss भी करते हैं, तो they admit कि there is an issue, but still since they are getting some resources, so they agree with it. इसी तरीके से we identified that by simply improving the policy of how the taxes are actually levied, that can also really help in terms of improving the revenue base and moving further in terms of a growth-friendly tax policy. So those which are interested in a very growth kind of an orientation of tax reforms can visit our book. Now, coming back to the book, it was a real delight to read the book, and मैं अली सलमान को कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि for a kind of a student of not a direct indirect student of Dr. Ikram and Huzaima, it's very difficult to discuss the things, but still the book at hand is really written in exceptional manner. The reason is that the authors both have rich understanding of the process themselves and the legislation actually, which gives them an upper hand in terms of rigorously analyzing the issues pertaining to the tax system. The start of the book really sums it all, जो इनका एक lifelong objective भी है, which is basically that it is dedicated to the millions of Pakistanis who pay income tax at all sorts of their expenditures, but they are declared as tax sheets and others, and that is something which really needs to change. और ये बहुत सारे हमारी जो और भी citations हैं, जैसे अभी doing business report जो वर्ल्ड बैंक की आई है, उसमें पाकिस्तान have remarkably moved from 138 to 108, और उसमें one of the major reason is that Pakistan has eased the process of paying taxes, introducing the online systems. जो उन्होंने number of taxes हैं अभी भी still they are very high, from 47 to 34, और जो compliance hours हैं they have reduced from 294 to 283, but that has actually helped us jump many slots in terms of improving the doing business category. So that shows how much potential there is. So the book which I am going to discuss today, since I'm not a law person,
But I understand that whatever changes are required in terms of a kind of a old and not evolving law, that really has economic outcomes, especially in our case, the revenue collection and the growth drag because of this hounded pursuit of high tax to GDP ratio based targeting for revenue collection is actually doing to our economy. जो दुनिया है, the world is moving towards the theory of nudge for taxes. And we are still looking back in terms of clutching our arms towards the neck of the small businesses, which otherwise also are restrained from better credits, subsidies, and other kinds of regulatory supports. PIDE has actually done a small estimate in which they identified that the compliance cost, even for smaller businesses, is about 2 to 300,000 per annum, just as a conservative estimate. So that shows the gravity of the problem. So we have been teaching our students that the taxes should have qualities such as being non-distortionary, the collection doesn't discriminate, and politically they are acceptable. But the situation at ground is that it's totally the opposite, and that's what the authors have also pointed out, that the Pakistan's tax policy is not based on the well-known and clear principles of taxation. And Huzaima and Dr. Ikram have gone through these one by one, and they have articulated the problems with anecdotal evidences, actually, with all sorts of legal and other understanding of the subject, and they have proposed certain reforms as well at the end. But on the reform side, actually, they have proposed two radical kinds of reforms, which I think going all along for all of them would not be a better idea, kind of a thing. For example, they have proposed the establishment of the National Tax Authority, but what if it also ends up the same as the current FPR, because the person, it's going to be the persons who are going to run the system. So that's the first issue. They have also identified the taxpayer bills of right, but it has got about 50 odd rights, which I'm not sure that how many of them could be politically acceptable and exactly doable. Further, they have also recommended a new income tax law, and that's totally correct, because we also have identified that till to date there are about 634 pages of pure legal languages, out of which most of them may have become obsolete and they're very difficult to understand. Further, they have also recommended to have a harmonized system of sales tax. That is something which we really need to go for, but considering that it's a devolved kind of a subject for services, so we need to have other auxiliary reforms as well, in the form of the Interprovincial Coordination Board or the CCI and so many other things. So I would recommend that definitely these reforms should go ahead, but maybe we can order them in some principle that the outcomes are what really could be made sustainable. Now, coming to the last side, the authors have also actually noted that the tax reforms need to be in the continuous process. It has to evolve as the economies are actually evolving. And they have mentioned many types of conflicts which have arisen. They have mentioned an example of the definition in the tax on services versus the contracts at the provincial level. That's something which we need to really dig deep into. Further, the authors have also evaluated the performances of different regimes of the political governments in their book. And that is something which is very heartening to see, because often the authors are shying away from directly pointing out the problems in the political structure and naming the exact authorities which are to be blamed for it. But the authors have really done a remarkable job in terms of identifying these as well. Specifically, the donors-based reforms agenda, they have identified that how miserably that has failed because of the design, and then later on the ownership problem of the issue was there. Now, the book actually brings to table many issues which can further be empirically analyzed, and for policy formulation can be done. And that is where the role of PIDE actually comes in, because we have potential graduates and we have got our researcher colleagues which are actually looking from the empirical side in terms of all these issues. Overall, the book is a very nice read, because
It's catchy in terms of pointing out anecdotal evidences. For example, it has also mentioned the PTI's Ghabrana Nahi term and refuted it in terms of how they have actually been more regressive and not doing reforms as compared to the earlier versions. So overall, there are many good academical topics which have been written, which can be further improved. And since the book has got a subject index, so it's easy to find out the exact issues. And I would really recommend that, since this is one of not just one of the, actually it's the only book which we could find on the tax reforms and overall tax policy. So this is really good academic addition, and we are looking forward that we are going to put our students to task in terms of providing this literature to them as a study material. So lastly, I totally agree with the authors in terms of their proposals, and we are looking forward in terms of working with them in terms of identifying further possible policy reforms which can really help in terms of improving the current tax system. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you. Kyun ji, Kram Saab, Huzaima Bibi, would you like to respond to any of these things? Then I'll request people from the floor to raise any questions that they like. Mohammad Iqbal Sahab is back and he wanted to conclude his comments. वो भी कर लेते हैं, पहले ये कर ले अपना जवाब. इकबाल साहब, you want to say something more? नहीं, मैं मुझे अगर कंक्लूड कर लेने देते, मैंने तो अभी बात शुरू की थी, ठीक है ना जी? तो फिर वो एक दफा ही कर now in 5 minutes खत्म कर ले, ठीक है? जी। अच्छा, मैं कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा था। कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करने के कुछ और भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि शायद जहन में हमारे नहीं रहते। हम आमतौर पे इंपोर्ट्स की अंडर इनवॉइसिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर आप कस्टम ड्यूटी का रेट बहुत ज्यादा कम कर दें, लेट्स से 5% कर दें, तो उसमें ओवर इनवॉइसिंग की भी पॉसिबिलिटी है, और वो ओवर इनवॉइसिंग जरिया होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का, कि आपका एक एसोसिएट वहां बैठा हुआ है, आप उसे इन्फ्लेटेड फिगर पे परचेजेस कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं, और पैसे वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट उसका क्या होता है कि आप 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं ओवर इनवॉइस्ड वैल्यू पे, लेकिन आप इनकम टैक्स पे ऑथर्स के प्रपोजल के मुताबिक 20% बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो आपका एक्सपेंडिचर होगा और वो आपकी इनकम को रिड्यूस करेगा। एट ए कॉस्ट ऑफ 5% आप 20% बचा रहे होंगे। तो इसलिए ये इस किस्म के जितने भी प्रपोजल होते हैं उनके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन पे ज्यादा डिबेट की, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं हम सेल्स टैक्स पे, कस्टम ड्यूटी के बाद। सेल्स टैक्स का भी जो प्रपोजल है वो बेस है कुछ इफेक्टिव रेट्स की कैलकुलेशन। ये बेसिकली मेरा ख्याल है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक स्टडी करवाई थी 2015 में, सिंगल स्टेज लो रेट टैक्स की वो स्टडी थी, उसको मैंने देखा हुआ है। उसमें जो इफेक्टिव रेट जिस पे बेस था वो इफेक्टिव टैक्स रेट पे था। वो इफेक्टिव टैक्स रेट गलत कैलकुलेट किए गए थे। सेल्स टैक्स जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेड है वो बेसिकली एक वैल्यू एडेड टैक्स है। इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट किए गए थे कि न्यूमरेटर पे वैल्यू सप्लाई ली गई और डिनोमिनेटर में लिया गया जो टैक्स उन्होंने पे किया हुआ है। ये तरीका गलत है। इफेक्टिव रेट क्योंकि एक वैल्यू एडेड टैक्स है, तो आप ऊपर अगर न्यूमरेटर में वैल्यू एडिशन लेंगे और नीचे टैक्स पेड लेंगे तो फिर एक आपको करेक्ट पिक्चर इमर्ज होगी। या आप ये करें कि अगर आपने वैल्यू सप्लाई लेनी है तो उनका टोटल आउटपुट टैक्स लें, क्योंकि उन्होंने आउटपुट जो उन्होंने टैक्स जमा कराना है उसमें अपने इनपुट टैक्स भी तो उन्होंने जमा करवाना है ना। बेसिकली सेल्स टैक्स जो है वैल्यू एडिशन पे है, वैल्यू सप्लाई पे नहीं है। लेकिन उस वैल्यू एडिशन को टैक्स करने के लिए हम मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं आउटपुट टैक्स का और इनपुट टैक्स का। कुछ मुल्कों में ऐसे नहीं होता, मसलन जापान में चंद साल पहले तक तो था, मुझे लेटेस्ट में अवेयरनेस नहीं है कि वो इस इनपुट आउटपुट टैक्स पे वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं लेते, वो उनके एनुअल अकाउंट से उनकी वैल्यू एडिशन कैलकुलेट। लेकिन जो करंट दुनिया में अवेलेबल है वो वही इनपुट और आउटपुट वाला है, और उसके लिए अगर आपने इफेक्टिव टैक्स रेट लेना है तो आपको करेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप इफेक्टिव टैक्स रेट्स ही गलत अडॉप्ट करेंगे तो आपकी सारी कंक्लूजन जो हैं वो नेसेसरीली फॉल्टी होंगी। दूसरा जो सेल्स टैक्स का रेट रिड्यूस करने का प्रपोजल है वो प्राइमरीली बेस्ड है कि हम हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ सेल्स टैक्स ले आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का हम सिस्टम ले आएंगे।
एक ही एजेंसी कलेक्ट कर रही होगी और वो क्रॉस इनपुट्स वगैरह हो रही होंगी। इसमें अब सीरियस प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन नहीं होते, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी से पे डिपेंड करते हैं डिसीजन। इस वक्त जो हमारी फेडरेशन के और प्रोविंसेस के रिलेशनशिप हैं, प्रोविंसेस या स्टेट्स हमारी ये फील करती हैं एक न्यू फाउंड ऑटोनॉमी वो फील करती हैं। इस मिलियो में, इस एनवायरनमेंट में क्या वो विलिंग होंगे कि अपना ये राइट किसी और को सौंप? इसी के साथ हम नेशनल टैक्स जो अथॉरिटी है या एजेंसी है उसके प्रपोजल को भी डिस्कस करते हैं। जब हम एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ये खैर हमारा सब्जेक्ट इस वक्त स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक प्योरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक उनकी मशीनरी भी प्रोविंस की ना हो। मैं फील करता हूँ कि किसी ना किसी दिन ये डिबेट आएगी कि जो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है, सेंट्रली रिक्रूटेड ब्यूरोक्रेसी है, वो क्यों प्रोविंसेस में सर्व करती है? प्रोविंसेस क्यों नहीं अपने लोग रिक्रूट करते, पुलिस के लिए भी और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो हम उसमें अगर एक बिल्कुल नई चीज और इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि ये जो रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी है ये भी सेंट्रली ही हो, तो उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स होंगे मेरे जाती ख्याल के मुताबिक कि शायद ये प्रपोजल लेके चला। थ्योरेटिकली मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए। खास तौर पे ये जो सेल्स टैक्स की हमने कलेक्शन को फ्रेगमेंट किया है, इसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिजनेसेस के लिए पैदा की है। जैसे डॉक्टर इकराम साहब ने पॉइंट आउट किया कि इतने उन्हें रिटर्न देने पड़ते हैं, एक एफबीआर को देना पड़ता है और 5 रेवेन्यू अथॉरिटीज को देना पड़ता है। उसमें हर प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। जिसको सूट करता है वो सर्विसेज को ओरिजिन पर टैक्स करना चाहता है, जिसको सूट करता है वो उसे डेस्टिनेशन के प्रिंसिपल पे टैक्स करना पड़ता है, और जो बिजनेस है बेचारा वो उनके दरमियान एक जो है ना फुटबॉल बना रहता है। फिर अगली बात उन्होंने ये भी की है कि जी के जो सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है उनको उन्होंने कहा कि जी तुम सर्विस एक्वायर तो करते हो ना, कोई गुड्स ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन ऐसी नहीं है कि जिसमें सर्विसेज का इनपुट ना हो, तो इसलिए तुम हमारे विद होल्डिंग एजेंट हो। तुमने जो सर्विसेज पे एक्वायर की उन पे टैक्स काटा है कि नहीं काटा, वो उनके लिए एक और अज़ाब बन जाता है। तो इस मसले का हल होना चाहिए, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे नजर नहीं आता। इंडिया ने अगर इसको हार्मोनाइज किया है तो कई सालों के बाद, कई डेकेड्स के की वो जो है उस ऑर्डियल से गुजारने के बाद लोगों को किया। शायद कभी हम भी इस डेवलपमेंट की स्टेज पे पहुंचे, कभी इसे इकट्ठा कर सकते, होना चाहिए, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे पॉसिबल नहीं लगता। फिर आखिरी बात हम आ जाते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात में एक फ्लैट रेट की टैक्सेशन पे पहला एतराज तो वही प्रोग्रेसिविटी का या इक्विटी का है कि जी बेसिकली टैक्सेशन का प्रिंसिपल तो यही है कि टैक्सेशन की जो रैशनल है वो यही है कि क्योंकि सोसाइटी से या स्टेट से लोग बेनिफिट ले रहे हैं और जितना बेनिफिट ले रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेट वो टैक्स, तो इसी से ये एमिनेट होता है प्रोग्रेसिविटी के जो लोग ज्यादा बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के वो प्रोपोर्शनेटली हायर टैक्स दें। ये एक एक्विटी की बात है, हम इसको एक्विटी को छोड़ भी देते हैं, हम तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। वो जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप टैक्स रेट एफ्लुएंट क्लासेस के कम करेंगे तो आपको एक रेवेन्यू की हिट मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी किताब में डॉक्टर साहब ने एक पैरा कोट किया हुआ है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से, ये पेज 14 पे है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। The World Bank in its project information document updated on April 22, 2019 reported as under. Income tax receipts come from a small number of taxpayers due to generous thresholds for individuals and widespread tax evasion. The budget law adopted in 2018 reduced the maximum income tax rates from 35 to 25% and for firms and from 25 to 15% for individuals. It also raised the threshold for personal income tax to PKR 400,000, approximately double the per capita GDP, with a nominal tax up to rupees 2,000 applied to incomes up to rupees 1.2 million.
more than 5.5 times the per capita GDP. Only income above PKR 10 million are subject to a maximum rate of 15%. देखिए बेसिकली 18 में गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि जी हम टैक्स रेट स्लैब 3 कर देते हैं और ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। अब वर्ल्ड बैंक का ये जो एक्सट्रैक्ट हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बुक में, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और अगर आप गवर्नमेंट का नैरेटिव देखें तो गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यू की शॉर्टफॉल की बात करती है तो प्राइमरीली 18-19 में जो शॉर्टफॉल था उसको इन्हीं टैक्स रेट की रिडक्शन को एस्क्राइब किया जाता है शॉर्टफॉल। थैंक यू। एम्पिरिकल एविडेंस है। और फिर आगे चल के पेज 44 पे स्वीडन का एग्जांपल दिया जा रहा है बुक में कि जी हम उनकी जो कि डेटा कनेक्टिविटी है उसको हमें उससे सीखना चाहिए। तो स्वीडन से हमें क्या उनका टॉप टैक्स रेट नहीं सीखना चाहिए? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जिनमें एक स्वीडन भी है, टॉप टैक्स रेट जो है 38 से 49% तक जाते हैं मुख्य मुल्कों में। और वो मुल्क जो हैं वो अगर गौर करें आप तो आइडियल है, उनका टैक्स टू जीडीपी रेशो इतना अच्छा है कि उन्होंने एक प्योरली वेलफेयर स्टेट्स कायम की हुई हैं। हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखेंगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टॉप पे होंगे। इकबाल साहब Happiness आप कर लें, आगे चलें। जी जी ये अगली बात एक और आ गई। अब मैं कंक्लूड करने के लिए ना मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे पे कदगन लगा दी थी 5 मिनट में खत्म करो, मैंने शायद ज्यादा ले लिया और एक आध मिनट में कंक्लूड करता हूँ। एक और रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारी इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उनको टैक्सेशन सिस्टम को उनका कॉस्ट ना समझें। हमारा टैक्सेशन सिस्टम भी डिसफंक्शनल है, हमारी इकोनॉमी भी डिसफंक्शनल है, लेकिन इनमें स्ट्रिक्ट कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है। आप ये सोचें कि हम बाकी हमारा जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, बाकी बिजनेस करने के लिए जो सहूलतें हैं, क्या वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? वाहिद इम्पेडिमेंट क्या टैक्स सिस्टम ही है? आप मुझे ये बताएं कि कोई बिजनेसमैन से आप पूछ के देखें कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का हमारे मुल्क में क्या सिस्टम है। अगर किसी शख्स ने किसी को गलती से पैसे दे दिए या कोई ट्रांजैक्शन कर ली और वो पैसे वापस करने के लिए तैयार नहीं है, आप मुझे अदालतों से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा दें। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल देख लें। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाना हमारा जुडिशियल सिस्टम तो अनफॉर्चुनेटली रिसेंट इवेंट्स को अगर आप देखें तो स्पॉन्सर करता है कॉन्ट्रैक्ट को वायोलेट करने को। एग्जाम्पल हमारे सामने है, रिकोडेकस एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, जो बेसिक एक बिजनेस के क्लाइमेट के लिए जरूरी चीज है वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। अब ये देखिए रिसेंट क्या हुआ, एक एग्जांपल जो इंडस्ट्री आजकल शोर में आ रही है कि जी पहले उनको इनकरेज किया गया कि कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाओ। अब गवर्नमेंट अपने रीजंस की वजह से वो शायद काउंट पॉलिसी होगी कि जी वो उनको गैस सप्लाई खत्म करें कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए, वो ग्रिड से बिजली लें क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। लेकिन आप उस बिजनेस पे गौर करें कि जिसने एक फीजिबिलिटी बनाई थी, मैं ये कैप्टिव पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट करूंगा और ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अब यकदम हम उसे कहें कि जी 15 दिन बाद या 1.5 महीने बाद तुमने अपना कैप्टिव पावर प्लांट बंद कर देना, इसका आपके ख्याल में बिजनेस क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट होगा? ठीक है, सारे आगे चलें। एफबीआर पे और टैक्स सिस्टम पे ना डालें। बस थैंक यू। अच्छा जी, उमर आरिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? उमर आरिफ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बस एक डिस्कशन पॉइंट था जो सारी सुन रहे थे कि एज अ स्टूडेंट या एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री के दो चीजें हैं कि जो माइंडसेट है एक अथॉरिटीज का वो शायद ज्यादा बड़ा इशू है। हम अगर एनटीए भी बना लेते हैं तो लोग या पूल ऑफ पीपल तो शायद वही हैं। हमें ये देखना पड़ा, जब पीआरए का एग्जांपल है, लोग कुछ एफबीआर से भी आए हैं तो वही माइंडसेट यहाँ भी आया है कि वो हमारा आर्गुमेंट सुनने की बजाय सिर्फ एक टैक्स हंगरी अप्रोच है। तो क्या ज्यादा एफर्ट उनकी ट्रेनिंग के ऊपर या उनकी एवोल्यूशन के ऊपर जरूरी है कि बजाय कि सिस्टम पूरा ही ऑल टुगेदर चेंज किया जाए? ट्रेनिंग तो इनकी बहुत है यार, ट्रेनिंग तो इनके पास माशाल्लाह बड़ी एकेडमीज और बड़े काम होते हैं और बड़े माशाल्लाह रियल एस्टेट है। मैं इनकी ट्रेनिंग एकेडमी पे जा चुका हूँ, होटल है पूरा माशाल्लाह, इतना अच्छा ट्रेनिंग एकेडमी है कि क्या करें। सिविल सर्विस की ट्रेनिंग एकेडमी तो बड़े अच्छे होटल्स हैं यार, वहाँ तो बड़ा कुछ होता है। खैर अच्छा जी, जनाब मैं आपके पास वापस आ जाऊँ विक्रांत साहब और ज़ैमा बीबी, पर 2-3 बातें मैं ऐड कर दूं बीच में। एक तो इकबाल साहब आपके पास भी वापस आऊंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बात
हमारा नैरेटिव जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि टैक्स जीडीपी रेशो हमारा बड़ा लो है। मैं तो डिसएग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ टैक्स जीडीपी रेशो हमारा बहुत हाई है, बहुत हाई है। अगर हमने फिजिकल एक्सपेंडिचर्स के साथ देखना है तो हम टैक्स जीडीपी रेशियो का आधा हर साल घुमा देते हैं, फेंक देते हैं नाले में। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लॉस हमारा तकरीबन 1.5 ट्रिलियन का है, दूसरा हमारा पीएसटीपी में लॉस तकरीबन 500 बिलियन का है कि आज कॉस्ट ओवररन वगैरह, और तीसरी हमारी जो फजूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी कॉस्ट है। इशरत ने अभी आइडेंटिफाई की तो 400-500 ऑर्गेनाइजेशन मेरा ख्याल उससे भी ज़्यादा हैं जिनके हम खर्चे बर्दाश्त करें। दूसरी चीज़ जो हम वीआईपी के खर्चे बर्दाश्त करें वो भी बहुत ज़्यादा है। सो क्वाइट फ्रेंकली अगर हमने इन चीज़ों के लिए टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ाना है तो मुझे समझ नहीं आती बात। स्वीडन की बात की, स्वीडन में यस वेलफेयर स्टेट है, हमारा तो वेलफेयर स्टेट नहीं, हमारा तो दूसरा स्टेट है, हमारा तो एक्सट्रैक्टिव स्टेट है। वेलफेयर स्टेट और एक्सट्रैक्टिव स्टेट में बड़ा फर्क होता है। तो हम क्या एक्सट्रैक्शन के लिए टैक्स पेयर इकट्ठे करें, फिर दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि जी टैक्स पेयर हमारे बहुत कम है। मैं मानता हूँ बहुत कम है, मैं तो कहता हूँ 3 मिलियन टैक्स पेयर हमारे बहुत ज्यादा है, बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या, हमारे पास है क्या जो हम टैक्स पेयर बढ़ाएं। और तीसरी चीज जो है इकराम साहब आपने बिल्कुल नहीं मेंशन की, जो मुझे समझ नहीं आती, टैक्स एक्सपेंडिचर जो हमारे हैं उसकी कोई बात नहीं करता। टैक्स एक्सपेंडिचर को हम भूल जाते हैं। यस, इकबाल साहब ने कहा कि हमें इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करना चाहिए, वो बेचारे बहुत गरीब हैं, बच्चे हैं, 60 साल के बच्चे हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते, 60 साल हो गए उनको, बेशक 200 साल चाहिए कि उनको और प्रोटेक्शन मिले, शायद 500 साल में हम गाड़ी बना सकें। मीनवाइल गाड़ी भी खत्म हो जाएगी पर हम शायद 500 साल में गाड़ी बना सकें। तो यार ये भी बातें कोई करे ना कि ये हमारी कोई सोचता है। फाइनल चीज जो मैं आपसे सारों से पूछना चाहता हूँ कि एफबीआर में कोई रिसर्च होती है या एफबीआर खुद ही जो मर्जी वाह देता है? एफबीआर कोई सोच के काम करता है? एफबीआर के कोई, मैं अभी वेबसाइट पे अभी बैठा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स नजर नहीं आते, कोई पेपर्स नजर नहीं आते, कोई कुछ नहीं। मैं इसी तरह चला जाऊं किसी और रेवेन्यू अथॉरिटी पे तो वहां रिसर्च पड़ी होती है। तो एफबीआर में कोई रिसर्च होती है कि नहीं होती, या ये सब बातें जो मर्जी कह दे? मुझे तो नहीं समझ आती। आई डोंट अग्री कि हमारा टैक्स जीडीपी रेशो कम है, 1। 2, आई डोंट अग्री कि कैस्केडिंग, किसी का कैस्केडिंग, किसी का इनपुट किसी की आउटपुट होती है। तो मुझे नहीं समझ आती कैस्केडिंग क्या होता है। नंबर 3, टैक्स एक्सपेंडिचर पे आप क्यों नहीं बात करते, और एफबीआर रिसर्च क्यों नहीं करती? एफबीआर जो बातें करती है हमें बताती क्यों नहीं है रिसर्च करके? फॉर एग्जांपल 300 बिलियन बाहर पड़ा तो बता दें कहाँ पड़ा है, ठीक है, वो बता दें कहाँ है, हम भी देख लें, ले आए वहां से जाके। तो ये इकराम साहब बताइए, फिर मैं सबके पास आता हूँ। सर आप क्विक क्विक करें ताकि खत्म करें जल्दी। जी, मैं जल्दी से ये कहना चाहूंगा कि नदीम, मैंने शुरू में ये कहा कि टैक्स एक्सपेंडिचर इज एज हाई एज 35% ऑफ देयर कलेक्शन, और उससे हम 2 ml खुद बना सकते थे बजाय चाइनीज से लोन लेने के, अगर हमने वो ना किया होता। और मुझे थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके सिर्फ 2 मिनट लूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या शेयर करना चाहता था। और वो मैं इसलिए रुका हुआ था कि मैं जरा सुन लूं कि क्या बात जो है वो हम कर रहे हैं और किस बात के लिए जो है हम इतनी झगड़ा कर रहे हैं। अब ये मसला ये है कि टैक्सेस तो सारे ही बुरे होते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि रियासत को उतने ही रेवेन्यू चाहिए जिससे वो परफॉर्म कर सके। बाकी का पैसा जो है अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा, बिजनेस के लिए रहेगा तो आगे बात चलेगी, नहीं होगा तो नहीं चलेगी। और यहाँ इस रियासत में जो आप सब बात कर रहे थे, रेसिप्रोसिटी तो है ही नहीं है। तो फिर ये कहना कि जी लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, मैं तो बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ सबकी, खास तौर पे जो अभी डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा कि जो आपका सबसे पुअरेस्ट पुअर है वो भी टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स। आप क्यों नहीं एक्नॉलेज करते कि आप उससे 12.5% ले रहे हैं जबकि उसकी इनकम दूर दूर भी टैक्सेबल लिमिट के अंदर नहीं आती है। हम डॉक्टर आर्थर लैफर की बात को रिजेक्ट कर रहे थे। अब आप जरा देखें कि आपको खुद ये अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। इतने हाई रेट्स हैं आपके कॉर्पोरेट टैक्स के, इतने जो हैं वो आपके वो हैं टैक्सेस के रिग्रेसिव हैं, आपका ओवर रिलायंस है इंपोर्ट टैक्सेशन पे, आपका हाई नंबर विद होल्डिंग टैक्सेस का है, आप डिस्क्रिशनरी और अनसर्टिनिटी को देख लें। इसके बाद आप ये देख लें कि हमारी जो फिस्कल स्पेस है उसका क्या हाल है। जब हम अपनी फिस्कल स्पेस को देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि आपकी फिस्कल स्पेस रही कोई नहीं है। आपकी इसमें टैक्स और लेकर क्या करेंगे आप, जबकि आपने सारा पैसा जो है वो उड़ा देना खर्चों की तरफ। और आप खुद देख लें कि आपके खर्चे कितने हैं और आपके उसके लिहाज से जो आपने बात की कि टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात ही बेमानी हो जाती है जब रियासत एक इतनी बड़ी मशीनरी के साथ
नहल मशीनरी के साथ जो कोई डिलीवर नहीं कर रही, वो जस्टिस डिलीवरी से लेकर आपकी म्यूनिसिपैलिटी तक के मसाइल हो, और उसके अंदर फिर आप कह रहे हैं कि जी हम और लोन लेंगे, जो ओनर का जो इस वक्त लेंडर का एजेंडा है वो बड़ा जबरदस्त है, और हम जो है उनकी तारीफें कर रहे हैं। वो 13 वेवर्स दिए उन्होंने पिछले प्रोग्राम में, और उसके बाद एंड के ऊपर जब वो छोड़ के गए तो फिर यकदम जिस हुकूमत ने क्यों कहा कि जनाब इकोनॉमी तो आईसीयू में थी। उस लास्ट ईयर में जब ये 2018 में खत्म हुआ था तो उन्होंने तो बेहतरीन 13 वेवर देने के बाद उस वजीर खजाना को बेहतरीन वजीर खजाना करार दिया था। तो ये बातें जो हैं, ये अगर हम नंबर्स पे जाएंगे तो फिर आपको नजर आएंगी कि जो एफबीआर कलेक्ट कर रहा है उसका 79% तो हम डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। अब ये नंबर जो है, अगर मैं सामने जल्दी जल्दी से रखता चला जाऊं और जरा आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करता चला जाऊं तो आपको अंदाजा होगा कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, जिसकी अभी नदीम साहब ने बात की है, वो जरा आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ हमारा जो है वो, ये मैं उन्हीं की फिगर उठा रहा हूँ। अभी उन्होंने जो एमनेस्टियों की कॉस्ट थी वो नहीं निकाली, कुछ नहीं किया, तो आपके रेवेन्यू कलेक्शन देखें और 2122.35 बिलियन जो है वो आपने खुद माना है कि हमने जो है वो टैक्स एक्सपेंडिचर कर दिया है, यानी कि लोगों को रियायत दे दी है और उनसे टैक्स नहीं लिया। ये कौन से लोग हैं जिनसे आप टैक्स नहीं लेना चाहते? उनके नाम क्यों नहीं बताते आप लोगों को? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने 4-4 दफा एमनेस्टीज ली हैं और इसके बावजूद अभी जो कहा डॉक्टर इकबाल साहब ने कि जी वो तो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो तो 1 टका कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो तो एमनेस्टियों के अंदर 2-2% के अंदर अपने बिलियंस के एसेट जो हैं वो वाइट कर रहे हैं। अब इतने हाईली कॉम्प्लेक्स और सेगमेंटेड सिस्टम की अगर मैं जी आप तारीफ करने को कहें और ये कहें कि जी आप फ्लैट रेट की बात क्यों कर रहे हैं, तो आप तो इकराम साहब ये थोड़ा सा यहाँ 1 मिनट रुक जाएं। मुझे जी ये बताइए। टर्म्स नहीं समझ आती ब्लैक और व्हाइट, और मुझे ये टर्म्स नहीं समझ आती एमनेस्टी। मतलब ये क्या टर्म्स हैं? ये एक बड़ी पाकिस्तानी टर्म्स हैं, मैंने कहीं और नहीं सुनी कि जी, ब्लैक इसीलिए मनी, मैं व्हाइट मनी, ये वो। मतलब और हम मनी लॉन्ड्रिंग जो है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं, हमारा क्या मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है भाई? लेकिन जी आप खुद अपने आप को चोर कहते हैं ना, सारा वक्त बाहर जाकर ये नैरेटिव देते हैं समझ कि हम नहीं आ रही करप्ट ब्लैक और तरीन। व्हाइट क्या है, मुझे प्लीज बता दीजिए। जी मैं बता देता हूँ, वो ये है कि हमारे जो रूलर्स हैं वो बाहर जाकर कहते हैं कि हम हाईली करप्ट नेशन हैं, हम टैक्स चोर हैं, और फिर आकर आप जो है वो सिलेक्टिव जो है अकाउंटेबिलिटी करते हैं, और फिर उसके बाद सारी दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जी हमारा जो इकोनॉमी की इनफॉर्मल साइज है वो हमारी जो एक्चुअली रिपोर्टेड इकोनॉमी है उसके बराबर है। तो फिर लोग कहते हैं, फिर वर्ल्ड बैंक और कभी एफपीआर ने इनफॉर्मल इकोनॉमी का एनालिसिस किया? कभी भी नहीं। लेकिन वो देखिए आपको बदनाम करने पे तो तुले रहते हैं ना। हमारे वो पास है एस्टिमेट। सर वो तो हमें कहते हैं कि आप टैक्स श्योर हैं, और ये नैरेटिव मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बारहा ये आकर कहा है कि जी एमनेस्टियां देना तो हमारा हक है, मगर आप सारे टैक्स श्योर हैं। जिन्होंने एमनेस्टियां ली हैं वो नहीं टैक्स श्योर हैं, वो तो बहुत सिलेक्टेड और बड़े ही जो हैं वो उनके पसंदीदा लोग हैं, और उनकी बात कोई नहीं करता। और वो आप जो ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक इसलिए है कि वो हमको ये एहसास दिलाते रहे कि आपको भूख में नंग में रहना है, हमने आपको कोई एजुकेशन नहीं देनी, आपको हमने कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देनी, क्योंकि आप टैक्स ही नहीं देते। और वो टैक्स क्यों नहीं लेते? उन अमीर लोगों से जिसके लिए हमने 35% का स्लैब तो रखा हुआ है, मगर पिछले 10 साल का एनालिसिस करके देख लीजिए कि उनमें से कितने लोगों ने आखिरी ब्रैकेट में टैक्स दिया है। आप अमेरिका की बात कर रहे थे, वहां पे टॉप 10 जो रिचेस्ट लोग हैं वो 70% टैक्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, और यहाँ आप उसका जो है आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमें एक भी स्टडी नहीं मिलती है एफपीआर की तरफ से कि उन्होंने एक टैक्स गैप की स्टडी करवाई थी 94 में और उसको भी डिसओन कर दिया था, क्योंकि जब उस स्टडी से ये साबित हुआ कि ये सारी नाअहली इनकी अपनी है और हाई टैक्स रेट्स की वजह से इनकी जो कलेक्शन की यील्ड है वो बहुत लो है और उससे इकोनॉमी तबाह हुई है, तो उन्होंने कहा कि यार तो हमने स्टडी कराई नहीं है, ये तो ऐसे वर्ल्ड बैंक ने करके दे दी, और खुद उसके नीचे नाम लिखा हुआ है कि उसमें एफबीआर के लोग भी शामिल थे, खातून का नाम लिखा हुआ है। अब आप इसको अगर देखते चले जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि जितना हमारी इतनी बड़ी जो साइज है उसके अंदर अगर 40 मिलियन कमर्शियल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूजर है तो सबके साथ टैक्स लग के आता है, और वो टैक्स क्या होता है कि अगर आप 43,200 रुपए का टैक्स देंगे साल में, जो 3,60,000 की इनकम पे बनता है, वो हम आपको
वापस नहीं करेंगे। और फिर कहते हैं कि सारे दुकानदार चोर हैं, जो गरीब से गरीब वाला भी है उसका बिल भी आज 3,000 से ज्यादा ही आता है, तो उसका टैक्स वो कहते हैं लॉ में लिख दिया है कि जी ये कभी भी वापस नहीं होगा, ये तो आप समझिए कि हमने आपसे ले लिया। अब मैं थोड़ा सा ये बात करने की कोशिश कर रहा था कि कोई प्रोविंसेस के राइट के ऊपर ना उनसे ऑटोनॉमी ली जा रही है, बल्कि हम एक नेशनल टैक्स एजेंसी की जो बात करते हैं उसमें उनका रोल ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपने अभी तक ना उनको पॉलिसी में रखा हुआ है। जब से 18th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 156(2) कहता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी अब फेडरलाइज्ड होगी, सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, ना प्रोविंशियलाइज्ड होगी। इसी तरह आर्टिकल 144 कहता है कि आप मिलकर सारे एक रेजोल्यूशन पास कर दें, कोई आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, 18th अमेंडमेंट को छोड़ने की जरूरत नहीं। फॉर एफिशिएंट कलेक्शन जो है आप सूबों को बाहर रख के आप कैसे कर सकते हैं, जबकि उनका शेयर 57% है टोटल प्रोसीड में। तो ये भी एक मिसनॉमर है जिसको कि उन्होंने सही तरह से समझा नहीं है। अब अमेरिका के अंदर IRS सारा टैक्स इकट्ठा करती है, तो वहां सूबाई जो खुद मुख्तारी है वो खतरे में पड़ जाती है। मैंने तो कभी किसी अमेरिकन स्टेट ने ऐसा कहते हुए सुना। तो इस तरह के मिस जो नॉमर्स हैं और इस तरह के मिसकंसेप्शन जो है वो किताब में हमने दूर करने की कोशिश की है। और अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमने ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स सर्विस की बात की है, और ये सर्विस उस तरीके से नहीं होगी जो CSS की तरह की होगी। यहाँ पे आप उन लोगों को बराह रास्त भर्ती करेंगे, जैसे IRS में वो उनको अगर फोरेंसिक ऑडिटर्स के लोग चाहिए, उन्हें अगर अकाउंटिंग के लोग चाहिए, अगर उन्हें IT के लोग चाहिए, उन्हें HR के लोग चाहिए, हम कब तक इस जो बिल्कुल वो सीधा किस्म का आपका CSS का सिस्टम है उसको लेके चलते रहेंगे। हमने जो आइडिया पेश किया है वो तो एक उससे कंप्लीट डिपार्चर है कि आप ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स सर्विस बनाए, और वो हर लेवल के अंदर। तो वहां क्या उनकी सूबों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स सर्विस के अंदर? आप उनको एक्सक्लूड करने की बात कर ही नहीं रहे हैं हम। और उसका जो पोटेंशियल के नंबर्स हैं वो आज मौका देंगे, वो किसी वक्त फिर हम किसी में रख के उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि दरअसल अगर आप इनकी लेटेस्ट फिगर भी उठाकर देख लें, जो ईयर बुक यानी कि जो पिछला फिस्कल ईयर एंड हुआ है, वो साफ बता रहा है कि इनकी हर बेस के अंदर, चाहे वो सेल टैक्स की हो, चाहे वो फेडरल एक्साइज की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, वो इतनी नैरो है कि 10 सिर्फ इनके रेवेन्यू स्पिनर होते हैं, जिसके लिए फिर आप बताइए कि हमें क्या जरूरत है कि हम इतना बड़ा अदारा रखें, और जो अदारा सिर्फ अपनी एफर्ट से 4% टैक्स इकट्ठा करे और इंपोर्ट स्टेज पे 70% टैक्स इकट्ठा कर रहा हो। तो ये काम तो किसी को भी आउटसोर्स कर दिया जा सकता है। और उसमें जो लीकेजेस होती हैं, अभी मैं उसका तस्करा नहीं करना चाहता। तो ये जो इतनी डिबेट है, इसको हमें एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। और इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि सिर्फ 2000 कंपनीज जो हैं वो 75% टोटल टैक्स का पे कर रही हैं। तो कौन से टैक्स बेस की ब्रॉडन की बात करते हैं BR वाले, और सारों को टैक्स चोर कह रहे होते हैं। तो ये जो एजेंडा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड का और रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स सिस्टम का, इसके बगैर आपकी कोई भी यहाँ लोकल इन्वेस्टर तैयार नहीं है इन्वेस्ट करने को। बजाय आप ये कहें कि जी फॉरेनर्स यहाँ आएंगे, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कर देंगे, तो आपको फंडामेंटल्स को ठीक करना होगा। जब तक आप फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करते हैं, आप इसी तरह आकर डिबेटें करते रहेंगे हम फजूल में, और जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जनाब हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करते रहें और हम सिम्टम्स की तरफ लगे रहें, और जो उसका रूट कॉज है जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, रूट कॉज को हम ठीक करने को तैयार नहीं है। वो ऑल एरियाज में फंडामेंटल गवर्नेंस की डिलीवरी के इश्यूज हैं। टैक्स कोई आइसोलेशन में तो नहीं देखा जा सकता ना। आपका कोई गवर्नेंस का सिस्टम ठीक है, वो आपकी कॉलोनियल एरा की जो ब्यूरोक्रेसी आउटडेटेड हो चुकी है, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो सेंटर हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और जहां आपकी जस्टिस डिलीवरी है वो तो माशाल्लाह है। तो अगर इन सारी बातों को मैं इसमें सम अप कर रहा हूं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और हमें इस डिबेट को आगे रिसर्च के साथ लेकर चलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से एंड आई हैव सेड। थैंक यू वेरी मच। Lovely, thank you जी। Uzaima Bibi, would you like to say something? नहीं? अच्छा चले, लेट्स गो ऑन टू अपना इकबाल साहब। ये बताइए, जो सवाल मैंने किए कि ये टैक्स GDP रेशो हमारा क्यों कम है? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल ठीक है। हमें क्यों टैक्स GDP रेशो ज़्यादा चाहिए? कि टैक्स GDP रेशो एक सर्विसेज के हवाले से होता है। हमारा स्टेट हमें सर्विस कर देता है जिसके लिए हमें टैक्स GDP रेशो बढ़ाना है। और ये कोई किधर लिखा हुआ है कि टैक्स GDP रेशो हैज़ टू बी पता नहीं कितने % ऑफ GDP।
क्यों जी इकबाल साहब? इकबाल साहब नहीं है या म्यूट हो गए, क्या हुआ है जी इकबाल साहब? आई थिंक इट्स गॉन. हाँ, ओके. महमूद खालिद, यू हैव एनीथिंग टू से? नहीं, ओके, चले जी. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक इट्स बीन वंडरफुल, इट्स बीन ग्रेट. आई थिंक वी नीड अ वेरी सीरियस डिस्कशन ऑन टैक्स एक्सपेंडिचर्स. अनफॉर्चुनेटली हमारे टैक्स एक्सपेंडिचर्स की डिस्कशन बड़ी कमज़ोर होती है. अली सलमान, आपको लास्ट वर्ड्स पहले मैं कुछ कह दूं, देन आई विल sort of conclude the session. अली सलमान, go ahead. जी, थैंक यू नदीम साहब. आई थिंक काफी अच्छी डिस्कशन रही एंड आई अप्रिशिएट जो पॉइंट्स रेज्ड बाय बोथ डॉक्टर इकबाल एंड डॉक्टर महमूद, एंड आई थिंक दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू maybe adequately address all the points. They raised important points, but I'd just like to add one point. जो हम बार बार टैक्स बेस की बात कर रहे हैं, मैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात नहीं कर रहा, बट बेस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली नंबर्स ऑफ पोटेंशियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ. जो हमारी एस्टिमेट्स हैं, उसका एक इंडिकेटर सिंपल सा ये है कि जो इस वक्त जो फर्म्स या कंपनीज जो टैक्स दे रही हैं वो अराउंड 100,000 है, इसमें लिमिटेड कंपनीज भी हैं और पार्टनरशिप फर्म्स भी शामिल हैं. जबकि जो अगर आप एक मेजर ले लें कि द फर्म्स विच हैव इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कनेक्शन इज अबाउट 4 मिलियन. खाली अंजुमन ताजरान के जो मेंबर्स हैं वो 2 मिलियन से ज़्यादा हैं. ऐसे ही हमारे जो अगर आप इनकम टैक्स की उसके डायरेक्टली इंडिविजुअल्स की बात करें तो हमारा ये ख्याल है, इन एन आइडियल सिनेरियो, ऑब्वियसली आइडियल सिनेरियो, और ये एक दिन में नहीं हो सकता, कि अगर आप सिर्फ 5% पॉपुलेशन को लें, टॉप 5% ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो दैट इज अबाउट 11 मिलियन पीपल. जबकि इस वक्त जो हमारे जो टैक्स देने वाले हैं, अगर हम वो टैक्स निकाल दें जो जीरो टैक्स दे रहे हैं, वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है. तो यानी कि 1.5 मिलियन और 11 मिलियन के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है. ये वो लोग हैं जो कि टैक्स सिस्टम में शामिल नहीं हैं. और हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि इसकी बड़ी वजह वो है जो डॉक्टर इकराम ने कुछ चीज़ों की तरफ आइडेंटिफिकेशन की है. रिफॉर्म्स यकीनन हुई हैं, सिंप्लीफिकेशन भी हुई है, टैक्स रेट्स कम भी हुए हैं, लेकिन वो किसी होलिस्टिक थॉट प्रोसेस के रिजल्ट नहीं है. और अगर हम एक तरफ से टैक्स कम करते हैं तो कोई और टैक्स ले आते हैं कि मजीद विद होल्डिंग टैक्स उसमें ऐड कर देते हैं. सो वो दे आर नॉट रिजल्ट ऑफ अ होलिस्टिक थॉट प्रोसेस, जिसकी वजह से हमें डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. मगर certainly we believe that there is a lot of gap, not necessarily in terms of significant increase in the tax to GDP, but certainly in the number of people who need to pay taxes in the country. Thank you very much. Thank you everybody. Sorry, I think mic बंद कर दें जी, जो भी अपना कर रहा है. Okay, anyway जी, thank you very much. I think it's been a wonderful discussion. I think टैक्स में हमें बहुत डिस्कशन की जरूरत है, बहुत इसमें इमोशन बिल्ट इन है, and there's a huge underlying expectation of the state जिसकी हम बात करते हैं. तो टैक्स actually is a fundamental issue in governance and it has to be taken very seriously. It has to be discussed. Unfortunately, mythology बहुत है. मैं हिसाब लगाता हूँ कि अगर हमारा 5 ट्रिलियन, तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब हमारा टैक्स जीडीपी टैक्स कलेक्शन है, तो अगर उसको 220 मिलियन से डिवाइड करें तो हर शख्स पाकिस्तान का तकरीबन 27,000 रुपया टैक्स दे रहा है. तो 27,000 रुपया काफ़ी है टैक्स के लिए. अब ये कि हुकूमत में एक टेंडेंसी होती है, वो चली आ रही है सिंस द डॉन ऑफ एंटिक्विटी, कि हुकूमत में जब कभी ये पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा एक स्लाइड दिखाता हूँ. वो इजिप्शियन पिरामिड्स, वो भी टैक्स जीडीपी रेशो से बने थे. फैरो टैक्स करता था और अपनी कबर बनाता था, तो ये भी एक टैक्स का पर्पस है. अब टैक्स का पर्पस क्या है? वी मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक्स, की वजह क्या है. अगर तो सरकार ने अपने पिरामिड्स बनाने हैं तो मेरा ख्याल मॉडर्न डे स्टेट में नहीं चलता, पुराने ज़माने में चल जाता था. ताजमहल भी टैक्स जीडीपी रेशियो से बना है, ताजमहल भी टैक्स से बना है. ताजमहल जब बना था तो इंडिया में फैमिन आ गया था,
ताजमहल की जरूरत थी या तो कोई जरूरत नहीं थी. तो वी रियली हैव टू बिगिन टू अंडरस्टैंड कि टैक्स पॉलिसी करती क्या है, क्या नहीं करती. टैक्स पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल वी एक्सपेक्ट कि वो इंडस्ट्री भी चलाएगी, वो इनइक्वालिटी भी खत्म करेगी, वो एग्रीकल्चर भी चलाएगी, वो ये आई थिंक दैट्स जस्ट टू मच. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इसको ना डिबेट करते हैं ना डिस्कस करते हैं. एवरीबडी अस्यूम्स, एक किस्म का ये बन गया, मंत्रा बन गया कि टैक्स जीडीपी रेशियो ज्यादा होना चाहिए, टैक्स बेस. मुझे बेस नहीं समझ आती. बेस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज बेस? बेस जो है वो मतलब इट्स जस्ट अ टर्म. इसका कोई मतलब तो नहीं है कि how many people pay taxes. Who cares how many people pay taxes? Ultimately all I want is good governance, and good governance नहीं मिल रही तो टैक्स भी नहीं मिल रहा. और गवर्नमेंट के रोल बहुत ज्यादा है. कई जगह वेलफेयर भी आ गया है, फॉर एग्जांपल हेल्थ भी है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी. हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है. तो व्हाट आर वी पेइंग टैक्सेस फॉर? Quite frankly, what we need is a very lean government, and that lean government is not happening because the ये जो है चीज के टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाओ, गवर्नमेंट उस पर चल के अपना बजट और बढ़ा देती है. तो बजट की साइड पे कोई गौर नहीं करता. तो there's a lot of discussion and debate that needs to take place here. Unfortunately, होती नहीं है. So I thank Huzaima and Ikram for starting this. I'm very happy that we've got 2 books here now, and inshallah students will look at them and learn and build on them. And the whole point of research is to build further ideas from existing research. So we at PIDE are very happy, and I'm sure I speak for Prime too, we are very happy to publish these things because the whole point is to start a debate. It's not about me or you. It's about a debate. And the debate will only happen if more of us publish each other and talk to each other. तो मैं तो जहाँ भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ इकराम हुज़ैमा का thesis है flat tax वाला, which is very important. I should take into account. Whether I agree with it or not is a different matter, but it's an important thesis that is out there and that should be taken into account, and we should talk about it. ठीक है जी? The whole point of research is to cull out theses and talk about those theses. If we don't talk about each other's theses, we are sitting in a blank economy, and that's the biggest problem of all. If a hukumat, if a government thinks कि वो बगैर research के सिर्फ बोल देगी चीजें और फतवे अनाउंस कर देगी, तो वो तो पुरानी बात आ गई ताजमहल और पिरामिड्स वाली के. गवर्नमेंट ने फतवा दिया बना दो जी, तो बन गया. तो अगर ये काम करना है तो ये मॉडर्न हुकूमत नहीं है, ये फिर पुरानी हुकूमत है. फिर ठीक है, मेरा वे और भी मुसीबतें पड़ती हैं. अगर हमने ताजमहल बनाना है तो लोगों ने चोरी भी करना है, बिकॉज जिंदा तो रहना है उन्होंने. ठीक है ना? अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे बेचारे? ये तो नहीं कि वो आपके लिए मर जाएं. तो अगर आप उनको बार बार तंग करेंगे, काम नहीं करने देंगे, तो वो फिर ब्लैक मनी लगाएंगे. तो ब्लैक मनी लगेगी, क्या बुरी बात है ब्लैक मनी में? भाई मैंने अपनी मेरे से मुराद बेचारा गरीब आदमी जो भी ताजिश है, उसने अपना तो भला करना है ना. तो अगर आप उसको नहीं सहूलत दे रहे तो वो फिर करेगा. फिर आप ब्लैक मनी और ये वो पीछे फिरते हैं. तो मैं एफपीआर से मेरा मुतालबा ये है, खुदारा अपनी रिसर्च शुरू करें, खुदारा अपना काम शुरू करें ताकि कोई बात बने. इकबाल साहब आप वापस आ गए. एनी लास्ट वर्ड्स? फिर मैं क्लोज कर दूं. इकबाल साहब. Nadeem, can I say something? I think Sara Nizamani was raising her hand. She wanted to say something. I think we should give her an opportunity. But Sara Nizamani waited too late. मैं 10 दफा कह चुका हूँ. Okay. Raise your hands, raise your hands. ये जो है ना, everybody जब मैं खत्म करने लगता हूँ, everybody raise their hand. ये मैं आदत ही खत्म करना चाह रहा हूँ कि भाई टाइम पे क्यों नहीं बोलते. इकबाल साहब को मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वो ही ड्रॉप्ड आउट. इकबाल साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं अब पाइड और प्राइम को इस बात पे कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि आपने 2 किताबें छपवाई हैं और आप उनको बहुत विगरस उनकी ओनरशिप ले रहे हैं. आप कॉन्ट्रेरी जो व्यू है उसको सुनने के लिए तैयार हैं. ये भी एक अच्छी बात होती है, ओनरशिप होनी चाहिए. तो आपने जो मेरी सबमिशन थी उनको नहीं टाइम दिया, ये भी आपकी चॉइस है, आप जरूर रखें. I had a lot more to add, लेकिन टाइम नहीं मुझे मिला. साहब आपका फुल वेबिनार करवा दीजिए. आप बताइए इकबाल साहब, बताइए whenever you like, आपका फुल वेबिनार करवा दीजिए. Would you like to do that? देखिए ना, आपने जो आखिर में कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे दी हैं, उनका कोई दूसरा वर्जन भी हो सकता है. काइंडली उनको भी अभी आपको वापस बुला रहा हूँ, बताइए. हाँ जी. पहली बात तो ये है कि हमारा बेसिकली पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेट को क्या करना चाहिए. जब मैंने बात की थी स्कैंडिनेविया के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की, तो क्या वो पिरामिड्स बना रहे हैं? उस अपने सिटीजन्स को ही फैसिलिटेट करने के लिए वो कर रहे हैं ना. एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, सारा कुछ फ्री है. तो हम स्टेट में ये रिजेक्ट नहीं कर सकते कि स्टेट को टैक्स नहीं लेने चाहिए. शायद आपके इल्म में नहीं है कि मैं अब एफबीआर का पार्ट नहीं हूँ, मुझे 2 साल हो गए हैं. मैं एफबीआर का शायद आप सबसे ज्यादा क्रिटिक हूँगा.
मैं कोई एफबीआई को डिफेंड करने के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं बैठा हुआ, लेकिन जो चीजों को करेक्ट पर्सपेक्टिव में पॉइंट आउट करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, यहाँ जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कुछ और भी आई हैं। मसलन क्रिटिसाइज आप भी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं टैक्स एक्सपेंडिचर को। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि टैक्स एक्सपेंडिचर पर जरा गौर तो करें। क्या हम चाहते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर, आप आज आटे पे सेल्स टैक्स लगा दें 17%, आपको 200 बिलियन आ जाएंगे। क्या हम ये करना चाहते हैं? क्या हम रॉ अनप्रोसेस्ड फूड की एग्जेम्पशन खत्म करना चाहते हैं? क्या हम स्टेट बैंक को टैक्स करना चाहते हैं? स्टेट बैंक का जितना प्रॉफिट होता है वो वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अगर स्टेट बैंक को एग्जेम्पशन दी हुई है तो उसका कोई रैशनल है, और एग्जेम्पशन दी हुई है हमने अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की वजह से, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से। मेडिसिन को सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है कि आप उनको टैक्स करना चाहते हैं। आप पेंशनर्स की पेंशन को टैक्स करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं तो सही ना कि कौन से टैक्स एक्सपेंडिचर पे आपको इतना, उसको एक स्वीपिंग एक बॉल पार्क फिगर कोट कर देना बड़ा आसान होता है। मेरे ये मीनिंगफुल तब होगा कि उसमें से हम कोई चीजें, ठीक है कुछ उसमें से ऐसी एग्जेम्पशंस हैं कि जो अनजस्टिफाइड है, जैसे पॉइंट आउट होता है कि जी जजेस को आपने एग्जेम्पशन दी हुई है, कुछ और हाई ऑफिशियल्स को दी हुई है, उसका इम्पैक्ट कितना है? वो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। इक्विटी होनी चाहिए, सारों को टैक्स देना चाहिए, ठीक है जी। जिसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो इनकम की डेफिनेशन में आता है, उसको टैक्स होना चाहिए। लेकिन उससे क्या फर्क क्या पड़ेगा? चंद मिलियंस का फर्क पड़ेगा ना। तो हम जो हैं कुछ ऐसे एवेन्यूज में चले जाते हैं जो कि शायद क्रिटिकल नहीं होते हैं। वो एक स्लोगनेरियन के लिए बड़ा अच्छा होता है कि जी एग्जेम्पशन दे दें। आप गौर करके मुझे पॉइंट आउट तो करें कौन सी एग्जेम्पशन आप खत्म करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा आटा की खत्म कर दें, आज सुबह आटे पे सेल परसेंट 17% टैक्स लगा दे, 200 बिलियन आपको आ जाएगा। अगर आप आपका टैक्स खत्म हो थोड़ा सा जाएगा। यहाँ आप क्लैरिफाई, पेंशन पे टैक्स लगा दें। साहब मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। आई थिंक जी आप इस वक्त, आई थिंक यू आर गोइंग ऑन द स्वीपिंग जी साइड। छोटी सी गुजारिश है, जब हम टैक्स एग्जेम्पशंस की बात करते हैं, हम जो आप एग्जांपल दे रहे हैं उसकी बात नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक वो कैलकुलेशन में आता है। आई थिंक जो बात हो रही है एसआरओज की यही बात, आती हैं। एसआरओज की बात हो रही मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं है, कि एसआरओज की आप बात टैक्स करिए के, ना। क्योंकि ये आपने छोड़ टैक्स दें, आप लॉज नहीं एसआरओज शायद की देखे बात करें, होंगे। एसआरओज की बात करें। एसआरओज हैं कि नहीं? जी हैं? हाँ जी, तो ये एसआरओ के जरिए ही एग्जेम्पशन आती हैं ना। मैं आप वही, मुझे बताएं ना, मसलन अच्छा सॉरी, एसआरओ के जरिए एग्जेम्पशन मिली सी पैक को, नहीं हो सी रही पैक के है। प्रोजेक्ट को, जी जी ठीक है। सी पैक के प्रोजेक्ट्स को मिली एग्जेम्पशन, ठीक है जी। गवर्नमेंट जो लोन रेज करती है उस पे एग्जेम्पशन देती है प्रॉफिट। अब अगर गवर्नमेंट ना वो एग्जेम्पशन दे तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उतनी बढ़ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा हर एग्जेम्पशन पे थोड़ा सा गौर करें तो शायद आपके पीछे कोई इकबाल साहब मैं आपको उनको दावत दे रहा हूँ ना, आप इस तरह करें कोई ना, रैशनल कोई मैं इकोनॉमिक आपको दावत दे रहा हूँ कि जस्टिफिकेशन आप नजर आएगी। आइए, अपना वेबिनार कीजिए, आप प्लीज तैयारी करके आए, डू अ वेबिनार, वी आर वेरी हैप्पी टू लिसन। अभी भी आपको टाइम सबसे ज्यादा मिला है, आपने ज्यादा बात की है, बाकी मैं ये टाइम करता रहता हूँ, ये नहीं कि आपको रोका गया है, अभी भी आपको सबसे ज्यादा नहीं, इसे देखा जा सकता है ठीक डॉक्टर है साहब। जी। डॉक्टर साहब पहले तो आपका इस बात पे भी मैं शुक्रिया करूंगा कि आपने ये समझा कि मेरी तैयारी अब नहीं है। ठीक है जी, आपकी इस कंक्लूजन की भी कोई बेसिस होगा ऑब्वियसली। वो मैंने ये ठीक है नहीं ना जी? कहा, मैंने कहा आप तैयारी कर जी ले अगले वेबिनार की, ये नहीं कहा कि आप तैयारी करके जी नहीं। देखिए जी डॉक्टर बिल्कुल साहब मैं पाकिस्तानी बहस नहीं करता, मैं बड़ी सिंपल बात करता हूँ। जी खुदा के लिए जी। आपको कितना टाइम दिया गया? ठीक है, आपने तकरीबन 45 मिनट बोला है, ठीक है, आप और नहीं बोल, बिल्कुल नहीं बोल, अच्छा ठीक है जी। नहीं ये बिल्कुल नहीं, आप चेक नबील करवा साहब, लीजिएगा। नबील साहब जरा वीडियो चेक करके भेज दीजिएगा इनको कितने मिनट बोला है ना, ठीक है। मैं जी प्लीज, और बाकी भी मेजर कर दें बाकी लोगों ने कितना बोला है। इकबाल साहब देखें, ये बहस गलत डायरेक्शन में जा रही है, बहस हम बातों पे, सही बातों पे जी करें, बिल्कुल इसके एड होमिनम पे बहस नहीं होती, दूसरों को गालियां देके बहस नहीं होती, बहस होती है असली बात पे। टैक्स जीडीपी रेशियो मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आई थिंक हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो बहुत है, हमारे जी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। अगर आपने 1.5 ट्रिलियन रुपया खर्चना है पीएस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे, जो पैसा जाया हो रहा है, एनर्जी लॉसेस पे जाया हो रहा है, वो मेरा कसूर तो नहीं भाई, मैंने तो नहीं किया ना, किसने किया? अगर इस तरह पैसा जाया करना और फिर टैक्स रेशियो बढ़ाना है तो मुझे तो समझ नहीं आती बात। अगर आपने एजेंसी बनाई है, बेतहाशा एजेंसी बनाई हुई है कि जी कभी टीडैप बनी हुई है तो कभी बीओआई बनी हुई है तो कभी ये बना, उसके लिए हम खर्चे पेश करें। अगर आपने 50 मिनिस्टर रखने हैं उनके लिए हम खर्चे पेश करें, यार ये भी तो चीजें सोच लेना, बताइए। जी। डॉक्टर साहब काइंडली आप ये गौर करिए कि अगर ये आपने नहीं बनाई तो ये एफबीआर ने भी नहीं बनाई।
मैं मानता हूँ, मैं एफपीआर एफबीआर ने भी जो इस वक्त हम टैक्स सिस्टम पे बात कर रहे हैं, बाकी जो रिफॉर्म्स होने वाली हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, वो सारी की सारी आप एफबीआर या टैक्सेशन सिस्टम के खाते में तो ना डालें। उसके लिए आप किसी और फोरम पे बात करें कि जी ठीक है जी, ये खर्चे गवर्नमेंट ना करे। एफबीआर तो कोई खर्च नहीं करती। एफबीआर की जो तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है दुनिया में सबसे कम है। अगर आप एफबीआर की देखें कि एफबीआर अगर 100 रुपए खर्च करता है, इकट्ठे करता है, तो कितना खर्च करता है, वो सबसे कम है। एक्सपेंडिचर करने वाले कोई और लोग हैं, वो उनके उनके साथ जरूर टेकअप करिए और करना चाहिए। ठीक है ना जी, स्टेट को अगर जरूरत कम होगी, एफबीआर भी बड़ा खुश होगा कि जी हम हमारा टारगेट कम है। और दूसरी बात ये है कि असल जो इश्यूज है ना, वो पॉलिसी से ज्यादा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के है। जो एक साहब ने मेरा ख्याल है सवाल किया था, उन्होंने पॉइंट आउट भी किया था कि जो आर्बिट्रेरी काम करते हैं, आर्बिट्रेरी काम लोगों को किस लिए करने पड़ते हैं कलेक्टर को? इसलिए कि उनको टारगेट्स आर्बिट्रेरी दिए जाते हैं। उनको ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें एवेल्युएट करूंगा कि साल के आखिर में तुमने कितने पैसे पाए। उसका ना कोई इकोनॉमी की ग्रोथ से ताल्लुक होता है, ना उसमें जो कि रेवेन्यू मेजर्स होते हैं उनका ताल्लुक होता है। उनको आर्बिट्रेरी टारगेट दे दिए जाते हैं और उसको चेस करने के लिए फिर उनको लोगों के साथ हाई हैंडेडनेस करनी चाहिए। सबसे पहली जो रिफॉर्म होने वाली है ना, अगर टैक्सेशन सिस्टम में करनी है, वो एक रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग की होनी चाहिए कि आप टारगेट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट जो एफपीआर को टारगेट देती है, वो ऐसा रीजनेबल हो कि जो अवेलेबल हालात में अचीव किया जा सके, वो आप दे देते हैं और फिर उनको जज करते हैं कि जी तुमने इतना शॉर्टफॉल कर दिया, तुमने इतनी कलेक्शन करनी थी, तुम इतने अमाउंट से फेल हो गए। हर महीने की पहली तारीख को ये अखबारों में छपा होता है। कोई ये नहीं देखता कि क्या वो टारगेट रीजनेबल था जो कि एफबीआर को दिया गया। तो ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली, जिस पे मुझे थोड़ा सा एतराज है कि ये सारे जो इल्स हैं, इसका जिम्मेदार टैक्सेशन सिस्टम को यानी कि एफबीआर को समझा जा रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। शायद एफबीआर इस सिस्टम का सबसे बड़ा विक्टिम है। ठीक है, बेनिफिशियरी भी है होगा, लेकिन विक्टिम भी है। इस एग्जिस्टिंग टैक्स जो सिस्टम हमने पाकिस्तान में राइज किया हुआ है, उसका एक विक्टिम एफबीआर भी है और भी बहुत सारे विक्टिम है। तो उसको काइंडली जो है, हर चीज को मैंने सिर्फ जो ऐसे आपको पॉइंट आउट किया था कि अगर बिजनेस और इंडस्ट्री का हमारा क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो सिर्फ वो टैक्सेशन सिस्टम की वजह से नहीं है, उसमें तो और बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैक्टर्स हैं इनको हम अगर होलिस्टिकली एक हमें इकोनॉमी की कोई करना चाह रहे हैं, बेहतरी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम पे फोकस ना करें, बाकी चीजों को भी हाईलाइट करें जो कि बिल्कुल छुपी हुई हैं। ये मेरी सिर्फ दरखास्त है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब। ये महमूद खालिद साहब, इकबाल साहब के साथ भी एक वेबिनार रखें। आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी बातें सुनना, और इकबाल साहब को पीडीपीआईडी की फोल्ड में लेके इनसे सीखें थोड़ा सा। राइट सर, देखिए, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि हम बाकी चीज़ों पे भी गौर करते हैं। इकबाल साहब आप देखिएगा, हम बड़े वेबिनार्स कराते हैं हर चीज़ पे। हमने इस पे भी कराया है, सिविल सर्विस रिफॉर्म पे भी कराया, डेमोक्रेसी पे भी कराया, हमने बहुत चीज़ों पे कराया और इंशाल्लाह कराते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो काम है, पीआईडी का काम ही सिर्फ एक नॉलेज बिल्डिंग है। हमारा काम किसी को अटैक करना नहीं है, और एफपीआर को हम अटैक बिल्कुल नहीं बिल्कुल कर सही है। रहे। ये भी गलत बात है। एफपीआर को अटैक नहीं हम कर रहे। देखिए, जो बात आपने की टैक्स जीडीपी रेशियो की, तो उस पर मैंने रिएक्ट किया था कि मेरा ख्याल है टैक्स जीडीपी रेशियो हमारा काफ़ी है। हुकूमत का काम होता है टैक्स जीडीपी रेशियो लेके उसके अंदर काम करे। हुकूमत ने पिछले 40 साल से, और इसमें मेरे इदारे का कसूर है, आईएमएफ का कसूर है, मैं आईएमएफ से भी लड़ता रहता हूँ कि जी टैक्स जीडीपी रेशियो को एक गोल बना दिया, और आपने कहा कि टैक्स जीडीपी रेशियो जो है वो सुप्रीम है, और हुकूमत अपना जितना मर्जी फैलाव डाल दे, टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाता रहे। तो इसलिए एफपीआर के लिए भी वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स फिक्स करते हैं, बिकॉज द होल डिबेट हैज टू चेंज। It's not about tax GDP ratio. Tax GDP ratio is nothing. It's not an economic goal. It's an FPR goal. It's got nothing to do with economics. उसको बना देते हैं कि जी टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ेगा नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती। मैंने ये लिखा भी हुआ, पढ़ा भी है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है 1500 जो है, वो अमेरिका की थी 1870 में, समथिंग लाइक दैट। बरतानिया की भी उसी वक्त तकरीबन थी, शायद उससे भी पहले थी। बरतानिया का टैक्स जीडीपी रेशियो at the turn of the century was 4% of GDP. अमेरिका का 7 या वैसे वर्षा कुछ ऐसा था। तो उनका टैक्स जीडीपी रेशियो सब काफ़ी था, बिकॉज स्टेट की ऑब्लिगेशंस कोई नहीं थी। स्टेट की ऑब्लिगेशन सिर्फ वॉर थी, और टैक्स जीडीपी रेशियो जो बढ़ा है उनका, वो सिर्फ वॉर के दौरान बढ़ा है।
ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ा। फिर ग्रेट डिप्रेशन के अंदर उनकी स्टेट की ऑब्लिगेशंस बढ़ी हैं कि उन्होंने वेलफेयर बीच में लिया, तो वेलफेयर की ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन होती है, उसके लिए लोग टैक्स देते हैं। तो वो तो एक ट्रांसफर सब्सिडी सिस्टम है कि जी अब हर बंदा यहाँ अमेरिका में या इवन बरतानिया में, अब बरतानिया में जितने मेरे दोस्त वहाँ हैं ओवर 65 जो वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको मिलता है वो क्या कहते हैं जो भी सोशल सिक्योरिटी होती है, सबको फ्री ट्रेन पास मिलता है, सारे बरतानिया में फ्री फिरे, सबको और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यस ऑफ कोर्स वो उनसे टैक्स लेते हैं फिर उनको वापस कर देते हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए ऐसी चीज, निजाम पहले बनाए फिर टैक्सेशन मांगे। यहाँ तो टैक्स मांग रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं बार बार कहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जी रिसर्च कर ले, ठीक है टैक्स एक्सपेंडिचर में हमारा इख्तिलाफ है, एफपीआर का काम है हमें बताए टैक्स एक्सपेंडिचर्स पे, जो मैंने स्टडीज देखी हैं टैक्स एसआरओ पे, जो सिंपल चीज है, आप ले लें गाड़ियों पे ले लें, गाड़ियों पे जो एसआरओ उसकी कैलकुलेशन हमारे सामने है। इसी तरह आप ले लें बाकी चीजों पे, ये शुगर पे ले लें जो इन्होंने किया है, वो भी तो एक, ऑल आई एम सेइंग इज एग्जेम्पशन या टैक्स का इंसिडेंस जो है is what the state takes away from the people either through direct taxation or through regulation. For example, हमने हिसाब लगाया जो शहरों पे जो टैक्सेशन का निज़ाम है बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज शहरों पे निज़ाम के आप किसी को काम तो करने नहीं देते, अपनी प्रॉपर्टी को वो यूज़ नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ बना नहीं सकता, आप कहते हैं जी बस एक स्टोरी बनाओगे, एक स्टोरी से ऊपर नहीं जाओगे वगैरह, वो भी टैक्स है गाड़ी पे। So there are so many things that we can talk about. Tax policy is not very simplistic. There's a complex issue here, and इस पे बहुत लोग काम करते हैं। तो इंशाल्लाह इकबाल साहब we'll do another webinar with you. I want to do more webinars, बल्कि मैं एहतिशाम को भी पकड़ता हूँ, उसके साथ भी करते हैं। वो भी एक टैक्स हॉक है, उससे मेरी रोज लड़ाई होती रहती है टैक्स हॉक से। I think quite frankly it's a subject that deserves a debate and deserves attention, and we should do it. Thank you very much, folks. I think it's been wonderful. We'll enjoy it again soon. All the best. Khuda Hafiz.